दूसरी बात, ये किसी एक धर्म के बारे में बहस هذا ليس نقاشا حول أي دين بعينه، وهذا واضح للجميع. ليس هذا نقاشا حول تمجيد أي دين أو التقليل من شأنه. لذا إن كان هناك من يشاهد أو جاء إلى هنا متوقعا ذلك، فأود أن أؤكد لكم أنكم ستجدون شيئا ذا قيمة. حتى مع الإفراط في استخدام الرموز الدينية في هذا النقاش، فإن هذين الشخصين اللذين يبدوان جدين الآن هما شخصان طيبان. التقينا لتناول الشاي مساء أمس، وكان بيننا الكثير من المزاح، حتى أننا التقطنا صورة لهما وهما يتبادلان التحية الدينية. هذا دليل على أنهما، على عكس الضجة المثارة على الإنترنت، اتفقا على نقاش أكثر هدوءا. يقتصر الحديث على تويتر فقط. إيلون ماسك يناديه إكس هذه الأيام. الآن يمكنني أن أبدأ هذا النقاش مع هذين العالمين، مع أنهما غنيان عن التعريف. نتعلم في الصحافة ألا نفترض أبدا أن العلم يقول الشيء نفسه. المفتي شمال ندوي عالم وباحث إسلامي، وهو مؤسس مؤسسة الوحيانية في كالكتا. تخرج من دار العلوم ندات العلماء المرموقة في لخناو، وهو ناشط في التدريس والعمل الفكري على وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات العامة. يتابع حاليا دراسة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. ومن المثير للاهتمام أنه يدير مدونة سفر إلى جانب دراسته. شاهدنا المدونة أمام برجي بترونس. جويد أختار معنا. هو شاعر وكاتب أغاني وروائي. كتب حوارات لأفلام وأغاني، كما أنه صريح في آرائه العلمية وإلحاده المعلن، ويناقش اهتماماته. أيها السيدات والسادة، هل الله موجود؟ يحاول الجميع إيجاد إجابتهم الخاصة لهذا السؤال. يسميه البعض اكتشاف جسيم الله، ويسميه آخرون اكتشاف الهوبوسوس. يحاول البعض الإجابة على السؤال كيف وجدت المادة؟ ماذا حدث؟ ماذا كان موجودا قبل بدء الخلق؟ ويقول البعض إن الدماغ هو المكان الذي تحدث فيه كل هذه الاكتشافات. كيف تطور في مسار الطبيعة؟ آمل أن نجد اليوم بعض الإجابات على هذه الأسئلة الجوهرية. أولا، أدعو المفتي شمال ندوي إلى المنصة. تفضل سيدي. اسمحوا لي أن أبدأ بطلب بسيط. يرجى إبقاء هواتفكم على الوضع الصامت أو وضع الإضاءة. تأكدوا من ذلك، فقد يحدث هذا كثيرا. الحمد لله الذي خلق هذا الكون لحكمة. السيد جويد أختار المحترم، السيد سوراب دويفيدي، والجمهور الكريم، شكرا لكم جميعا على حضوركم اليوم في نقاشنا اليوم. وبما أننا سنتناول موضوع وجود الله، فهذا موضوع يمكن فيه استخدام عام मुताल्लिक़ कोई भी डिसीजन लेने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। लिहाजा डिबेट के शुरू में ये जरूरी है कि हम ये जान लें कि आज के इस टॉपिक में कौन सा स्टैंडर्ड सही होगा और कौन सा गलत होगा। सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसे मैं समझता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे, वो है साइंस। जबकि साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। और उसकी वजह क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। व्हाई? क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पिरिकल एविडेंस है, और एम्पिरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड
नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है रेविलेशन, कि रेविलेशन के जरिए हम ये साबित करें कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन ये स्टैंडर्ड भी आज इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि रेविलेशन मेरे नजदीक सोर्स ऑफ नॉलेज है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन हमारे जावेद अख्तर साहब के नजदीक ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा ताकि जावेद अख्तर साहब के लिए वो अनएक्सेप्टेबल ना हो। तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पिरिकल एविडेंस दो, तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। You are using the wrong tool. इस टूल से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता। लिहाजा मैं समझता हूं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है, और हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। अब बचता है एक ही स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक, रीजनिंग। और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड की एक्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एक्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो डेफिनेटिव हो, इनडेफिनेटिव ना हो, जो 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाजे हो, जिसे लॉजिकली रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर सौरभ साहब, ये एक इंसान है और तमाम इंसान कॉन्शियस बीइंग है। लिहाजा नतीजा क्या निकला? हमारे सौरभ साहब भी कॉन्शियस बीइंग है। क्या ये इंडेफिनेट आर्ग्यूमेंट है या डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है? ये डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है। ये 2 और 2 की तरह वाजे है, इसमें किसी तरह जो है लॉजिकली इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर आज हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के न होने पर जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा। लेकिन साथ में ये भी ऐलान कर देता हूं प्रेडिक्शन के तौर पर कि ऐसा कोई डेफिनेट आर्ग्यूमेंट कोई नहीं पेश कर सकता। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रिफ्यूट नहीं कर सकती। चलें अब हम एक एग्जांपल सोचते हैं, एक सिनेरियो, सिंपल सिनेरियो, तमाम ऑडियंस से गुजारिश, हम और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर हैं, ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहाँ क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है, कोई और कलर भी हो सकता था, ये इसी शेप में क्यों है, कोई और शेप भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहाँ पे रखा है। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो बॉल है इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, और एग्जिस्ट करना ही था तो किसी और फॉर्म में करती, किसी और कलर में करती। अब आप इस बॉल को एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, यहां तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। बताइए कि क्या साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज़ नहीं बदलेगा, अभी भी सवाल रहेगा ये यूनिवर्स कहां से आया, इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहां से आया, क्यों आया, किसने बनाया, ये सवाल उस वक्त भी वैलिड रहेगा। लेकिन ये सवाल अगर हम जनाब जावेद अख्तर साहब से करें तो चूंकि इनका वर्ल्ड व्यू एथिस्टिक है, और सिर्फ इनका नहीं, मतलब जितने भी एथिस्ट हैं और एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू को रखने वाले से अगर आप ये सवाल करें कि ये यूनिवर्स कहां से आया, तो इनका जवाब या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा या डॉगमेटिक होगा। या तो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। या
كان ये إلههم कहेंगे جوبيتر هو कि راسا ये यूनिवर्स खुद ब खुद बन गया। इसका मतलब ये है कि उस बॉल को भी खुद ब खुद बन जाना चाहिए, लेकिन बॉल के ताल्लुक से ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि ये खुद ब खुद बन गई, लेकिन यूनिवर्स के ताल्लुक से कर दिया जाएगा। इसे हम दूसरे अल्फाज में डॉगमा भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे जावेद अख्तर साहब जरूर गॉड ऑफ गैप्स की मिसाल भी जरूर देंगे और मिसाल देंगे कि पहले जमाने में बिजलियां कड़कती थी तो लोगों ने किसी एक खुदा की तरफ और बारिश होती थी तो दूसरे खुदा की तरफ मंसूब कर दिया, उनके पास दलील नहीं थी। ये हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, ये हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल फेनोमेना के प्रोसेस की इंटरप्रिटेशन को जान लेने से ये कहां से साबित हो गया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। इस पर मैं इंशाअल्लाह अभी आगे बात करूंगा। आप हजरात ये भी देखेंगे और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब जरूर इमोशनल आर्गुमेंट्स भी देंगे, जो कि एक लॉजिकल फेलेसी है जब बात आती है ट्रुथ को डिसाइड करने में। क्यों? मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि अगर गॉड है तो इविल क्यों एग्जिस्ट करता है, जबकि मैं कहता हूं इविल का एग्जिस्ट करना गॉड के एग्जिस्ट करने की दलील है, उसके खिलाफ नहीं है। क्योंकि अगर गॉड है तो हम सब उसके सामने अकाउंटेबल हैं, और अगर हम अकाउंटेबल हैं तो अकाउंटेबिलिटी के लिए इविल का मौजूद होना जरूरी है, उसके बगैर हम अकाउंटेबल नहीं हो सकते। और अगर हम अकाउंटेबल नहीं हैं तो हम जनाब जावेद अख्तर साहब से पूछेंगे कि आप बताएं कि फिर सफरिंग इस दुनिया में क्यों है? अगर खुदा नहीं है तो सफरिंग क्यों है? और उन लोगों के जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है और वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए? क्या उनकी सारी तकलीफें बेकार चली जाएंगी? अब आ जाए उसी एग्जाम्पल की तरफ कि बॉल, मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को किसने बनाया या इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया, मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है। कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद न होना नामुमकिन हो, क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फेलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इंफिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू। थैंक यू। मैं इन दलीलों के बाद जावेद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा, आप बैठ के बोलना चाहेंगे। دراسة استقصائية في أمريكا لتحديد الأشخاص الذين يتمتعون بأطول عمر. كان هناك من لا يشربون الكحول على الإطلاق ومن يشربون زجاجة كحول. وكان أطول الأعمار من نصيب من يشربون علبتين من الكحول ويتناولون. لكننا نعتقد أن الكحول أمر بالغ الأهمية. وأنا أعتقد ذلك أيضا. لماذا؟ ليس الأمر كذلك. بعض العادات متأصلة فيه حتى يومنا هذا لا يزال البعض يشرب الحليب حتى لو قابلتهم بعد 10 سنوات ستجدهم يشربون كوبا واحدا فقط. ليس الأمر أنهم يستمرون في شرب الحليب من الصباح فصاعدا. لم أرى مدمنين على الكحول. مدمنو الكحول موجودون. الدين يميل إلى الانتشار تماما كما ينتشر السرطان تماما كما ينتشر الكحول. لا بد أن هناك من يستخدمه استخداما صحيحا. أنا متأكد أن واحد منهم. سعدت جدا بلقائه
उन्हें उस पर لكن इतना كم ही من एतमाद الناس था تراهم जितना اليوم आज किसी मजहबी आदमी को अपने الدمار في खुदा पे العالم हो। كبير جدا بينهم क्रिश्चियनिटी आने الدين से لا पहले يقول هذا यूरोप ربما में لا एक मजहब يقوله था لكن عندما जर्मेनिक يشربون रिलीजन, يتصرفون उसका एक هكذا खुदा था, उसकी एक बीवी قليل थी, من الكحول उसके दो ربما बेटे थे, يكون أمرا एक बेटी جيدا थी। फिर जर्मनी में لكن जब قل यूरोप में الكون क्रिश्चियनिटी يعمل आई بدقة तो वो खुदा, उसकी متناهية. बीवी और पूरे खानदान يمكننا चला। القول إنه تشكل من तो تلقاء हमने نفسه अगर हम हिस्ट्री देखें أعتقد أنه तो لا يوجد खुदा जो है استقرار वो أعظم من ज्यादातर هذا फनी है, هذا غير منطقي वो हमेशा रहे नहीं। ثم قال और वो जो लोग इन्हें لقد मानते थे ركزتم على الكرة उनको आप कहें तो وليس जाहिर على थे, उन्हें तो الجزيرة कुछ पता ही नहीं था। ऐसा नहीं है, من خلق वो अपने الجزيرة वक्त में बड़े काबिल लोग أنا أستخدم مثال और अपने الكرة वक्त में उन्होंने لتوضيح बड़े ذلك बड़े काम किए हैं। الكرة फिलोसफर थे, مشروطة साइंटिस्ट والجزيرة थे, مشروطة लेकिन उनका मजहब كلاهما कहाँ गया, يتطلب उनके وجودا खुदा कहाँ ضروريا गए। आज जो ثم खुदा قال है दुनिया में لا عدل في लोग उन्हें الطبيعة मानते हैं। आपको क्या نحن मालूम من कि कितने نحدد वर्षों के बाद ماهية क्या होने वाला है। الأخلاق. हम यूरोप में देखते ما هو तो चर्च العدل؟ खाली है। نحن من तो نحدد वक्त के على साथ سبيل चीजें बदलती المثال हैं। من يقود जहाँ السيارة तक أو من يقف इसका في ताल्लुक है زحام मजहबों المرور. का, لم يقل الله हर मजहब आपसे एक चीज मांगता هذا ما يسمى بالتكافؤ Faith. الزائف إنها ये faith क्या مغالطة चीज? منطقية لقد استخدمت What is the مثال difference القيادة between faith and وحركة belief? المرور ये هذه कोई, ये तो बहुत ही أخلاق अहमकाना ذاتية. बात होगी कि कोई आदमी कैसा لا अगर खुदा है तो يمكنكم मुझे استخدام दिखाई। الأخلاق ये तो الذاتية जाहिलाना बात كمثال हुई। وفرضها على الأخلاق मैंने तो नॉर्थ पोल الموضوعية. नहीं देखा है, العدل هو मगर मैं الأخلاق मानता हूँ कि नॉर्थ الموضوعية. पोल है। मैं क्यों إذا मानता قلتم हूँ? إنه لا عدل इसलिए في कि अगर ये الطبيعة दुनिया فإن राउंड है तो غياب उसका कोई العدل जवाब أمر होगा। طبيعي कुछ लोग हैं जो वहाँ فالطبيعة गए भी كما हैं, هي. कॉमन सेंस कहता है कि لماذا ऐसा نسعى होगा, جاهدين لتحقيق सबूत है, العدل في العالم गवाह है, रीजन هذا है। غير तो منطقي ये मेरा फेथ नहीं है। إنه غير عقلاني तो फेथ में और बिलीफ में لذلك डिफरेंस है। هناك أشياء كثيرة जो شرعية मजहब أو मानता है, جيدة हर मजहब, موضوعيا फेथ मानता وأشياء أخرى फेथ का ذاتية. मतलब ये है कि ना نحن कोई نقول गवाह हो, بشكل ना شخصي कोई ما सबूत هو हो, أخلاقي ना أو कोई غير रैशनल हो, أخلاقي ना بناء कोई على लॉजिक हो, الاجتماع ना कोई والتقييم प्रूफ हो, الشخصي. मगर तुम एक बात को मानो। لكن ये الأخلاق है الموضوعية التي تحقق वरना العدالة बिलीफ होता। والتي أكد अगर عليها इसमें कुछ भी مرارا सबूत होते, وتكرارا गवाह هي होते, موضوعية तो फिर इसे وليست आप बिलीफ ذاتية. कहते हैं। जैसे मेरा إذا बिलीफ है قلت कि नॉर्थ إنها पोल है, ذاتية मेरा फेथ थोड़ी। فسؤالي لك هو هل ستضر फेथ الظلم इन إذا तमाम ظهر الإجماع शर्तों को الاجتماعي रद्द ذلك؟ करता है। ثانيا قال तो फिर إنه stupidity إذا क्या है? شربت علبتين من الكحول अगर मैं एक बात فلن ऐसी يبقى الأمر मानूं كما هو जिसकी ना कोई بل लॉजिक है, سيزداد. ना कोई रैशनल है, ना وينطبق कोई الشيء प्रूफ है, نفسه عليه. ना कोई गवाह है, اشرب علبتين وسيزداد. ना कोई सबूत है, هذا और मैं مثال उसे واحد मानूं من هذا तो القبيل ये स्टुपिडिटी हुई। يمكنك इसे ही تطبيقه मैं कल في को أي मैं यकीन कर مكان लूं حتى कि لو एलोन طبقته मस्क على है मेरा الإلحاد. भाई है, तो मुझे इंतहाई खुशी عندما होगी, تأخذ सुकून भी علبتين बहुत من मिलेगा मुझे। الإلحاد سيصبح लेकिन الأمر مثل और कहे भाई سوريا तुम मानते الشمالية. हो, क्या सबूत है भाई, वो तो शुक्रान लक. अमेरिकन है और तुम तो इंडियन हो, أدعو वो तो جويد नस्ल صاحبي अलग है, तुम्हें لجولة कभी أولى मिले من भी नहीं। الردود. साहब देखिए मेरा फेथ है, لديك 7 इस पे बात دقائق. किया। फेथ का मतलब ही यह है कि आप प्रूव नहीं कर सकते। يسعدني أن المفتي अगर आप صاحب प्रूव कर قد सकते أقر हो بأنه तो لا फेथ की يوجد जरूरत عدل في الطبيعة. फिर तो आप बात إذن करेंगे, आप कितनी لا बहस कर عدل लेंगे। في شيء लम يصنعه अल्टीमेटली दुनिया الإنسان. का हर मजहब फेथ पे टिका है। دعني أسألك और फेथ سؤالا का मतलब है واحدا एक ऐसा أرجو यकीन أن जिसका تتحقق कोई منه. सबूत, कोई गवाह, कोई تلك الزهور रैशनल الجميلة नहीं। التي تراها في الحديقة ليست طبيعية. अब आप ये कहें, جميعها क्या आप ये مهجنة. क्यों कह रहे हैं कि साहब أما الزهور التي ये تنمو في कहना الغابة किसने बताया? فهي عادية تماما हमारी ये है من कि आपने صنع बताया कि الإنسان. एक आइलैंड पे गए और تلك एक बॉल التي देखी। تراها في الحديقة وتعجب आपने بها ये नहीं कहा من कि صنع आइलैंड किसने الإنسان أيضا. आपको सिर्फ बॉल لقد पे है। خلقت بالتهاجين أنواعا مختلفة من हमने الزهور आइलैंड पे हमने रहते وتطويرها होते हैं आइलैंड। فامتهجينها इसी مرة तरह ये أخرى आइलैंड है, بهذه सितारे, الطريقة. ये إنها ليست गैलेक्सी, ظهورا ये सब طبيعية. आइलैंड है खला में। لن ترى ورودا في हम أي टेकन फॉर غابة أو ग्रांटेड برية. लेते हैं, हम पूछते नहीं कैसे बनाए। كل आपके هذا من जजीरे के صنع बारे में नहीं الإنسان. पूछा है। يا أخي مما تخاف मेरी كل पैदाइश هذا कैसे हुई? في سالف क्या الزمان मैं प्लान كان पैदा हुआ? المتدينون غاضبين جدا من I was planned to be محاولة born. هذا الإنسان خلق إنسان آخر. या एक लकी स्पम था जो ما किसी الذي एक से يزعجك चिपक أنت؟ गया। إن كان قادرا على मेरी الخلق पैदाइश रैंडम, فلندعه يخلق. रैंडम। ما هذا الخوف؟ और इंसाफ जिसे وكيف आप وصل कहते بك हैं, الحال إلى ما تقول इंसाफ का तो اليوم नेचर أنه से कोई مستحيل؟ वास्ता ही नहीं है। जो أتذكر आप कहते हैं قصة कि एक दिन इंसाफ करेगा। عندما كنت في इंसाफ الصف इज ह्यूमन السادس कॉन्सेप्ट। كنت ضعيفا جدا नेचर في में कोई इंसाफ الرياضيات नहीं। فاستعنوا अगर بالمعلم. शेख हिरन को खा जाता علمني है तो العد उसे من कोई सजा 1 नहीं। إلى 7. لن أنسى अगर ذلك एक اليوم आंधी أبدا. आती है और हरे भरे पेड़ों في को उखाड़ اليوم के الذي फेंक दी شرح فيه तो ما आंधियों هو की जेल النصف नहीं وما होती। هو 3/4
شعرت नेचर وكأن में رأسي इंसाफ سينفجر. नहीं, इसलिए كان वो هذا नेचर को الرجل इंसाफ की يطلب مني जरूरत أن है. أدخل من داخل नेचर الجبال तमाम وأنا है. أسير. अब हम कहें أضحك कि على هذا साहब ये اليوم. देखिए जो मैंने खाना खाया था, لذا ये मेरी आंखों ने यूं कर दिया उसे, أشياء तो इसे تفوق सजा मिलनी عقلك नहीं. تماما वो وتدهشك. सिस्टम है, ऐसे ही चल रहा है. سيأتي وقت تبدو فيه नेचर فيها وقد बगैर حدث इंसाफ ذلك. के है. هذه هي इंसाफ इज طبيعة द ह्यूमन कॉन्सेप्ट. لا तो تصدر जो أحكاما आपसे कहता متسرعة है कि मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, تحل वो इंसानी بالتواضع बहन, ولا أدري ये ماذا नेचुरल है ही تقول؟ नहीं, ये إلى أي आसमानी مدى है ही يمتد नहीं. هذا नेचर الكون؟ का तस्वुर, كم وضع इंसाफ على का وجوده तस्वुर. وكم भाई आप साथ سيكون؟ मिलते हैं, अब आप لا نعلم. लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं. هل حددت ये متى क्या है? خلق؟ तमाम بحسب सच, رأيك तमाम नेकी, خلق तमाम قبل शराफत, حوالي 14 Left hand مليار drive. سنة كما هو वरना معتقد. क्या होगा, या तो आप क्या कर देंगे, ماذا كان आपका يفعل एक्सीडेंट الله हो طوال जाएगा, या آلاف किसी को मार المليارات देंगे, من السنين या قبل ट्रैफिक ذلك. जैम हो जाएगा. كان झूठ, جالسا बेईमानी, بهدوء रिश्वत, कोई ये يتنفس तमाम जो है ड्राइविंग ثم वगैरह خطرت होता له فكرة इसके ऊपर لنفعل कुछ شيئا. ये तो हमने बनाया, ستستمتع كثيرا जैसे हमने بالفعل. लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाई है. فكر في ये الأمر. कॉन्सेप्ट ऑफ इंसाफ لقد كان موجودا ये دائما हमारा है, أليس كذلك؟ इसका नेचर से कोई वास्ता नहीं. خلق. शेर खा وماذا जाता है, كان हिरन को उसे जेल موجودا होती قبل है. ذلك؟ कुछ भी नहीं, ما كان है قبل. ही नहीं. كيف ذلك؟ तो ये जो दुनिया الأمر के बसीत रिलीजन जिद्दन. प्रॉमिस करते हैं لقد इंसाफ, توصلنا تدريجيا إلى इसी से मालूम होता है कि मैन मेड है. في ये مكان ما بين तसव्वुर कहीं और का है ही नहीं. 2500 سنة तो مضت नेचर है, कुछ أخبرك लोग कहते हैं أحدهم नेचर ही ما खुदा هو है. وصدقته. तो नेचर में तो इंसाफ नहीं. ومنذ ذلك कहीं. الحين صدقت ما और قال आप वादा قبل कर रहे हैं कि तुम्हें मरने के बाद 2500 سنة. इंसाफ मिलेगा. لقد تغير मुझे كل अगर شيء. मिलेगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा, تحل الأمور. लेकिन मैं यकीन नहीं الآن कर पाता, لا يدعي العلم इसलिए أو कि मैं أي फेथ नहीं فيلسوف पैदा कर सकता. معرفة كل شيء. The very fact بل that يقولون religion إن ما نعرفه demands يظهر faith, مدى ضآلة ما نعرفه. इसका मतलब है कि فلنناضل من उनके पास أجل حقوقنا ونخلق justification موقفا. नहीं है. نعم حان अच्छा था, الوقت. फिर شكرا لكم. रिलीजन अगर शुक्रान मॉडरेशन में है, जज़ीला. कोई सभी नहीं, أدعو वो आप المفتي में कुछ صاحب खूबियां भी पैदा الجولة करता الثانية होगा, من هذه देखिए उससे ये السلسلة फायदा है, إلى वो फायदा है. أمامكم अल्कोहल 7 जो है, دقائق مرة أخرى. वो ज्यादातर शुक्रान दवाओं में लकुम. यूज होती है. لقد और طلب एक السيد جويد أختار सर्वे किया الصاحب गया था مرارا अमेरिका में وتكرارا कि شرح लॉन्जिटिविटी معنى किन الإيمان. लोगों की है. तो اشرح एक معنى तरफ वो लोग थे الإيمان. जो शराब पीते ही नहीं थे, لقد और एक तरफ شرحت. वो थे जो एक बोतल शराब पीते थे. الإيمان قد يكون صحيحا أو सबसे ज्यादा خاطئا. लंबी उम्र होती है واليوم لا जो نتحدث 2 पैक عن नाप के الإيمان. शराब पीते और खाना खाते हैं. نحن نتحدث عن मगर الحقيقة हम وهل शराब को बुरा الله موجود. समझते हैं. मैं भी बुरा هل समझता الله موجود؟ हूं. क्यों? هل تعني ऐसा الحقيقة होता وجود है. الله أم عدمه؟ कुछ चीजों में أي आदत من होती है هاتين जो बढ़ती है. الحقيقتين صحيحة؟ आज तक मैं एक आदमी दूध الآن पीता है. يمكنك आप 10 साल बाद भी تسميته मिलेंगे तो إيمانا एक ही गिलास أو पीता اعتقادا أو होगा. لا. ऐसा नहीं هذا होता, ليس सुबह من से दूध شأني. पीता रहता है. ثم قلت يا أخي मिल्कोलिक الدين मैंने नहीं يمنعنا देखी, من التساؤل. अल्कोहलिक होते हैं أقول من ये يمنعنا tendency है لابد मजहब أن की. يفعل ذلك. कि वो बढ़ता है. أنا لا जैसे أفعل कैंसर बढ़ता है, بل يجب जैसे أن शराब. أتساءل. कुछ लोग होंगे أقول إنه لا जो उसे يوجد सही أحد तरह से यूज करते. मुझे أو यकीन है أقول कि إن هناك हमारे شخصاً मुफ्ती साहब भी ما उनमें से, लेकिन बहुत खुशी मिलती है كلاهما इनसे. ادعاء लेकिन कितने लोग وكلاهما या يتطلب जब देखते إثبات. हैं दुनिया में जो तबाहियां हैं, نحن أيضا इनमें لدينا कितना عدد हाथ है. الإثبات. उन लोगों का जो बिलीवर لقد عرضت حجة कहते था मजहब ये नहीं कहता, न कहता होगा, فلنحللها. मगर जब ये मजहब पीते हैं آخر ما तो ऐसे قاله भी हम كان करते हैं. ماذا كان يفعل الله थोड़ा सा قبل अगर हो तो शायद 150 बहुत अच्छी عاما बात, أو ملايين लेकिन سنين قبل خلق शराब थोड़ी العالم. सी नहीं रहती, يا سيدي उसमें टेंडेंसी है على أي थोड़ा सा حال अगर 2-3 دعني कैंसर के أجيب. सेल हो ना बॉडी में तो आदमी أنت इससे شخصية रहेगा, محترمة लेकिन वो لدينا. 2-3 सेल नहीं रहते. لو لم تكن मल्टीप्लाई موجودا होते हैं. لما जावेद استفدتك साहब टाइम هكذا. पूरा हो गया. टाइम हो गया, लो बस बात खत्म हो गई. अच्छा قبل मुझे 100 कुछ और कहने को था भी عام नहीं. أو بعد 100 عام قبل بعد الآن जी هذه मैं كلمات पहले تتعلق जवाबी بالسمع. दौर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ मुफ्ती साहब को. योर रिबटल राउंड 1. यू हैव 7 minutes. إذن ماذا كان يفعل الله قبل ذلك؟ السؤال غير منطقي. थैंक यू वेरी मच जावेद साहब. मुग़लक़. आपकी बात को सुनकर बड़े महजूज हुए हम लोग. महजूज, ماذا डू यू كان يفعل अंडरस्टैंड? الله वी एंजॉय. قبل خلق الكون؟ ओके, अब थोड़ा सा लॉजिकली उसको हम लोग ये देखते दरअसल हैं. हम लोगों ने कल गुजारिश की थी मुफ्ती साहब से भी, जावेद साहब से भी, कि हिंदुस्तानी जबान आम फहम सबको समझ में आ जाए और जहां कहीं आप मुश्किल शब्द इस्तेमाल करें वहां बताते भी चलें. يتعلق بالله. थैंक यू. तो सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड जावेद साहब ने हवाला दिया कि खुदा फानी है. कितने मजहब आगे चले गए, किसी ने जुपिटर को खुदा माना, किसी ने किसी को माना. मैं कहता हूं जिसने कॉन्टिंजेंट चीज को खुदा माना गलत माना, वो खुदा ही नहीं. اسمع لم वो खुदा ही नहीं है. أعلم من قبل أن العلم يفعل ذلك.
हम तो नेसेसरी बीइंग को साबित करने बैठे हैं, वो नेसेसरी कॉज जो इटरनल है, जो अबदी भी है और अजली भी है। हम किसी और को साबित करने नहीं बैठे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि फेथ एंड बिलीफ ये एक ऐसी डेफिनेशन है फेथ की जो इन्होंने पहली मर्तबा पेश की है, या माफ कीजिएगा इन्होंने पहली मर्तबा पेश नहीं की है, रिचर्ड डॉकिंस ने पहली मर्तबा पेश की है। मुझे मालूम है ये सोर्स कहां से है। एपिस्टेमोलॉजिकली फेथ और बिलीफ का फर्क आप इस तरह नहीं कर सकते सर। फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है, बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है। जो लॉजिक, रीजन और एविडेंस से बैक्ड होगा वो फेथ सही होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को, जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो और एविडेंस हो। तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है और गलत भी होता है। तो आज फेथ और बिलीफ के डिफरेंस पे बात नहीं हो रही। आज आप चाहे फेथ एक्सेप्ट कर लें या बिलीफ एक्सेप्ट कर लें, आज ये बात होगी कि ट्रूथ क्या है, चाहे ट्रू बिलीफ सही है या ट्रू फेथ सही है, और फॉल्स फेथ क्या है और फॉल्स बिलीफ क्या है, बात इस पे हो रही। दूसरी चीज इन्होंने पूछा स्टुपिडिटी फिर क्या है। अगर फेथ रिलीजन स्टुपिडिटी नहीं है तो और क्या है? चूंकि फेथ का मुतालबा करते हैं तो स्टुपिडिटी क्या है? मैं कहता हूं स्टुपिडिटी एथिज्म है। उसकी वजह यह है कि आप एक सड़क पे जा रहे हो और आप किसी गार्डन में जाएं और देखें वहां लिखा है फूलों के साथ I love जावेद अख्तर, and I really do. I love you, sir. So, जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर अब ये बताएं, क्या आप ये कहेंगे वाह व्हाट अ नेचुरल सिलेक्शन? ये क्या नेचुरल सिलेक्शन है? नहीं, ये प्रिसाइजली डिजाइंड है, इसके पीछे डिजाइनर है। लिहाजा अगर कोई एक ऐसी कॉमन सेंस की बात को कबूल नहीं कर रहा है कि यूनिवर्स जो इतने प्रिसाइजली काम कर रहा है, हम कहते हैं कि खुद ब खुद बन गई, मैं समझता हूं इससे बड़ी स्टुपिडिटी और कुछ नहीं है। ये रैशनल चीज है। फिर हमारे सर ने कहा कि आपने बॉल पे फोकस किया, आइलैंड पे फोकस नहीं किया। अरे आइलैंड को किसने बनाया यही समझाने के लिए तो बॉल की मिसाल दे रहा हूं। और बॉल भी कॉन्टिंजेंट है, आइलैंड भी कॉन्टिंजेंट है, दोनों नेसेसरी बीइंग का मुतालबा करते हैं। आगे इन्होंने कहा कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। हम डिसाइड करते हैं कि मोरालिटी क्या होती है, इंसाफ क्या होता है। हम डिसाइड करते हैं, जैसे ड्राइविंग सीट में ट्रैफिक वाला, ये तो किसी खुदा ने नहीं कहा, ये है, इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। ये एक लॉजिकल फेलेसी है। आपने जो है मिसाल दी ड्राइविंग की और ट्रैफिक की, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है। आप सब्जेक्टिव मोरालिटी को मिसाल बनाकर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर नहीं ठोक सकते। इंसाफ की ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। अगर आप ये कहते हैं कि नेचर में इंसाफ नहीं है तो इंसाफ का न होना ये नेचुरल हुआ, तो फिर नेचर को नेचर रहने दे, क्यों हम इतना स्ट्राइव कर रहे हैं दुनिया में इंसाफ लाने के लिए? ये तो इलॉजिकल बात है, इरैशनल बात है। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिवली जो है इविल या गुड है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सब्जेक्टिवली हैं। सब्जेक्टिवली जो मोरल होता है या इमोरल होता है उसको हम सोशल कंसेंसस से या पर्सनल प्रेफरेंस से डिसाइड करते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है जिसमें इंसाफ आया, जो इन्होंने बार बार रिपीट किया, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप कहते हैं ये सब्जेक्टिव है तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सोशल कंसेंसस के जरिए अगर जुल्म को सही करार दे दिया जाएगा तो आप जुल्म को जस्टिफाई करेंगे? दूसरी चीज इन्होंने ये कहा कि 2 पैक शराब पी लें तो वो उतने पे नहीं रहता, बढ़ जाता है। यही मामला मजहब के साथ है। 2 पैक आप पीने पड़ेगा, तो ये एक ऐसी मिसाल है, उसको कहीं भी फिट कर लें कि आप एथिज्म पे जब फिट करें, जब आप 2 पैक एथिज्म का लेंगे ना तो वो बढ़ बढ़ के नॉर्थ कोरिया बनेगा। थैंक यू। फर्स्ट राउंड की रिबटल के लिए मैं जावेद साहब को इनवाइट कर रहा हूं। आपके पास 7 मिनट का वक्त है, रीसेट कर दीजिएगा प्लीज। मुझे इस बात की खुशी है कि मुफ्ती साहब ने भी मान लिया कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। तो कोई भी चीज जो इंसान नहीं बनाई उसमें इंसाफ नहीं होता। एक बात मैं आपसे पता लगाइएगा, ये जो आप बाग में जाते हैं बेहद खूबसूरत देखते हैं ना, इनमें से कोई नेचुरल नहीं है। ये सारे फूल क्रॉस करके बनाए गए। जो जंगल में फूल होते हैं निहायत मामूली होते हैं, ये फूल इंसानों ने बनाए।
जो आप إذا बाग में كان देख لا के वाह वाह يزال कहते لديك हैं, القليل ये इंसानों من के बनाए हुए हैं, اللياقة डिफरेंट يا चीजों को أخي क्रॉस يا करके, للعجب. डेवलप करके, फिर क्रॉस करके أولا इस तरह से وقبل बनाए كل गए. شيء नेचुरल फ्लावर أنا नहीं, معجب किसी جدا जंगल वीरान में بحقيقة जाके आप أن गुलाब كلا के फूल नहीं العالمين देखेंगे. يحترمان ये الوقت सब बनाए وقد हुए हैं جلس इंसान. على बहुत से كراسيهما काम इंसान لفترة ने किए हैं. طويلة وأكمل बाकी है कि حججهما आपने غالبا मेरी قبل एक الوقت बात का जवाब المحدد. नहीं दिया, जिससे मुझे بهذا शिकायत تنتهي है الجولة कि الثانية फेथ من क्या है, النقاش. और आप फेथ الآن मांगते تأتي क्यों हैं? الجولة الثانية من الرد आप तो लॉजिकल متبوعة हैं, आपके بالاستجواب. पास तो सारे रैशनल हैं, لا आपके पास لقد सारे انتهى सबूत हैं, نقاشك तो يا आपको سيدي. फेथ की डिमांड क्यों करते हैं في منهج مدرستنا कि भाई तुम يتم सरेंडर कर تدريس दो और सवाल الرسم मत करो. بإنشبرنيشن कोई मजहब सारे सवाल करने की بقلم इजाजत नहीं देता بريميتشن. है और मना करता है कि لن ज्यादा सवाल أدعك न करो, تفوت बह أي जाओ. جولة من جولاتك. आप क्यों रोकते हैं? الجولة الثانية من हकीकत ये है الرد कि مع इंसानी المفتي तारीख شمالي क्या है. ندوي صاحب. इंसानी तारीख ये تكمن है कि المشكلة दुनिया में दो तरह के الحقيقية लोग في أن हैं. جويد एक صاحب वो لا يملك जिन्होंने अपनी مفهوما लाइल्मी واضحا की عن الله. परस्तिश की है, قال إنه दूसरे حتى वो لو كان जिन्होंने الله अपनी موجودا ignorance قبل या الكون लाइल्मी से فسيظل झगड़ा هناك किया है زمن और أو मालूम أن किया الكون है कि نفسه جزء من الزمن. ये जो आप कह रहे हैं نحن आज आप نؤمن हैरान हैं بهذا الإله. कि भाई ये यूनिवर्स कैसे बनी. الكائن الضروري लोग يجب हैरान أن थे कि يكون सूरज خارج डूबता है तो इधर से الزمن कैसे निकलता لأنه है. خالق الزمن. और عندما आप خلق एक الزمن कदम जाके كيف يمكن أن हमेशा يكون का هو मानने نفسه को في तैयार है, الزمن. एक कदम पीछे ही मान जाइए. عندما خلق भाई المكان आप इसके बाद كيف जाके يمكن कहते أن सवाल न يكون करना कि هو ये نفسه कहाँ से في आया, المكان. ये पावर तो हमेशा से إذا हमेशा كان है. مقيدا तो आप بالفعل यूनिवर्स के बारे में بالزمان मानने क्या والمكان. तकलीफ, एक कदम पहले لقد रुक जाइए. أثبت لي ذلك منطقيا ये हमेशा से وإن थी لم या يكن नहीं थी حديثي हमें मालूम नहीं منطقيا है. يا سيدي और ये कहना فهذا कि हमें كلام मालूम नहीं है. ميتافيزيقي कमाल ये है कि فماذا दुनिया نتحدث के सारे إذا मजहब सब بأي जानते हैं لغة كان ये حديثنا दुनिया कैसे बनी थी, कैसे وإن كنت मिटेगी, تقول إن मरने के बाद الزمن क्या لم होगा, يكن इनको सब موجودا याद من है. قبل فلماذا किसी تقول को إنه كان موجودا डायनासोर دائما होते थे पहले ये وسيظل नहीं पता, موجودا دائما किसी को नहीं. الزمن موجود دائما किसी भी فكيف दुनिया تقول की إنه मजहबी كان किताब موجودا में دائما डायनासोर का وسيظل जिक्र नहीं है. موجودا دائما लेकिन الأبدية बाकी सब تعني बातें how وجود to وقت make ما. universe in 4 easy lessons إن لم يكن and बाकी هناك सब पता है. زمن فكيف يمكن أن जिसको يكون सब पता है موجودا वो دائما हम على में أي ये حال इंकिसार या سيظل ह्यूमिलिटी موجودا. होनी चाहिए कि हम ये कहें कि والآن हमें دعني बहुत सारी أفكر बातें في नहीं هذا मालूम, لقد قلت إن लेकिन هناك हम उनकी حالات परस्तिश न اتصال करना, أكثر अपनी هناك लाइल्मी को की परस्तिश न करें. فلنفكر في أمر واحد हम उसे هذا العالم पता लगाने يكونه की كائن कोशिश مطلق करें. जिस दुनिया में आप बैठे हैं सर, بدون ये हॉल जो إرادته है, لا ये تتحرك इलेक्ट्रिसिटी जो है, ورقة ये माइक जो है, شجر إنه जिस हवाई كلي जहाज से قدرة. आप आए थे वो जिस كيف कार से يعمل आप هذا यहाँ आए, العالم؟ ये सब उन लोगों وما की حال बनाई هذا हुई العالم؟ जिन्होंने सवाल किए थे. لقد مات 45,000 طفل دون ये سن दुनिया العاشرة في غزة जिसमें आप आज आराम से يموت हैं, الأطفال ये جوعا उन في लोगों की كالاهندي बनाई है ويموتون कि जिन्होंने بالدفتيريا सवाल किए थे. और الدفتيريا हर مرض स्टेज غريب पे इन सवालों يبدأ को البلغم في الحلق بالموت يتحول لون مكروه الطفل कहा गया, إلى الأزرق गलत कहा गया. طفل مسكين आप तारीख لأنه पढ़िए, बड़ी قريب दिलचस्प من किताब है رجل ذي बर्ट्रैंड نفوذ रसेल की, رجل قوي يستطيع أن जिसने يفعل ما उसने يشاء रिलीजन एंड साइंस لهذا कि السبب कब تدعو से له أن रिलीजन يفعل जो है كذا साइंस के وكذا अगेंस्ट है. और هذا يعني हद तो أنه ये है يتدخل في कि حياتنا भाप के اليومية इंजन के खिलाफ थे, وهو स्टीम يراقبنا इंजन के भी खिलाफ थे, वो إذا फतवे हुए كان वहाँ पे. موجودا حقا वेटिकन ने दिए. ولنفترض جدلا فعندما أنظر तो إلى ये العالم हमेशा لا अभी أكن जैसे له ही أي احترام ये राइट विंगर आते हैं ماذا تفعل؟ अमेरिका में أن पावर كل में, القدرة तो वो जो كلي अपना ये الوجود क्या बोलते हैं उसे, كلي الوجود सीड, لا بد أنك موجود في كل مكان أنت في كل زاوية كانت تراقب كيف يمزق الطفل إربا كانت تراقب وتريدني أن أمدحك وأن वो जो تفعل ह्यूमन बॉडी के يا صديقي رئيس وزرائنا أفضل منه إنه على الأقل يفكر उस पर रिसर्च बंद हो जाती है, من تعبد रिपब्लिकन नहीं करने देते. إذا كان موجودا अरे أصلا भाई इतना डर क्या فهذا है? العالم مليء एक जमाने بالظلم में बहुत والطمع नाराज थे ये والاستبداد सारे والقسوة मजहबी लोग कि ولا ये تقل इंसान तो إنه इंसान يراقب. बनाने की कोशिश कर रहा है. आपको क्या سيخبرك तकलीफ है? يوما बना ما ले तो बना लेने दो. إذا كان ये खौफ क्या है? يراقب ولا يتدخل فلماذا تدعو और ये सब تقول आज जो आप कह أنجز रहे हैं ना هذا कि العمل ये من कैसे أجلي. हुआ, मुझे किस्सा याद आता هذا है. يعني जब ضمنا मैं छठी أنه क्लास में يستطيع था तो التدخل मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक था. بإمكانه तो أن टीचर रख يوفر दिया لك गया. وظيفة. उसने 1 2 3 4 5 6 7 को حتى सिखा لو दिया لم मुझे. يحصل वो عليها दिन मैं भूल नहीं غيره सकता हूँ. سينجزها لك जिस दिन لأنك उसने ये دعوته बताया कि 1/2 क्या لذا होता है إذا और استطاع 3/4 أن क्या يوفر होता لك है. وظيفة मुझे ऐसा लगा कि ويزوج मेरा सर बीच से फट ابنتك जाता. ويحصل ये لابنك على आदमी कह रहा था الإقامة कि हम दीवार के الدائمة अंदर से فعلى الأقل walk करते يستطيع हैं. أن يوقف
يوقف موت هؤلاء हंसता हूं मैं इस الأطفال. बात पे। तो आज जो عليه أن बातें يفعل आपके شيئا. जहन से बिल्कुल परे हैं और أتمنى आप لو हैरान لم होते يكن होंगे। هناك एक سيد वक्त आएगा لهذا कि मामूली العالم. लगेंगे।
और हुआ है حاكم مطلق आपकी इंसानी القدرة तारीख ही है। इतनी وهكذا जल्दी सारे يسير फैसले العالم। आप मत कर लीजिए, थोड़ा أتمنى لو لم humility يكن रखिए هناك कि أخ भाई ये हमें नहीं لو मालूम كان هناك ये أخ कहने में क्या لكان है, ذلك عارا ये كبيرا यूनिवर्स कहाँ तक फैली, شكرا ये لكم कब से है और कब तक سيداتي रहेगी, हमें नहीं وسادتي मालूम। انتهت आपने جولتان من फैसला कर هذه लिया कब तक? المناظرة ये आपके हिसाब से الآن कुछ 14 تبدأ बिलियन أهم डॉलर جولة जो وأصعبها समझा وهي जाता جولة है। الاستجواب उससे पहले الآن हजारों سيختبر करोड़ों أدب अरबों साल هؤلاء तक खुदा العلماء बैठा क्या وقد करता है। حددنا مدة हम 16 बैठा था ऐसे دقيقة ही जमाइया ले रहा, إلى أين फिर उसे आइडिया يتوسع है यार هذا एक काम الكون करते हैं, وإلى वक्त अच्छा أين गुजर जाएगा يتجه यूनिवर्स का। ولماذا يتوسع أو لقد اختلقت ذلك بالفعل वो तो हमेशा से है ना, मगर यूनिवर्स हमेशा से नहीं है, لماذا ये يتوسع तो बनाई गई है। أي كون آخر और उससे هذا पहले क्या था, इनका क्या काम الكون था, الذي أراه من خلال التلسكوب يبعد عمي ملياري ये سنة बड़ा ضوئية आसान है, जो बात हमें आज لا धीरे धीरे علاقة पता لي चली है, बरसों 2000 مليارا 2500 سنة साल تعني पहले आपको أنني किसी إذا ने बता سافرت दिया بسرعة कि क्या था, आप 80,000 मान गए, ميل في الثانية तो तब से वही मान فسأصل रहे हैं जो إلى 2500 هناك साल في पहले कहा غضون गया। 200 مليون سنة सब कुछ बदल गया है, ما الحاجة सॉल्व إلى हो रही ذلك है चीजें। अभी هذا العالم هذا साइंस الكون बिल्कुल दावा नहीं خلق करती या للبشرية कोई أروع المخلوقات फिलोसफर ये दावा नहीं करता لذا कि हमें सब لم मालूम। أفهم كل बल्कि वो هذه कहता है कि हमें المصطلحات जितना मालूम होता है उससे ये मालूम لم होता है कि يكن हमें هناك कितना सब شيء يستحق الفهم فيها तो हम अपनी जहालत هذا से ما लड़े। يسمى بالغاية उसकी أن परस्तिश। هذا الكون जी بأكمله هذا العالم थैंक यू خلق للبشرية قسما मैं- كل هذا من أجل البشرية तर्कों की इस श्रृंखला में बिल्कुल राउंड सही। 2 के लिए मुफ्ती साहब को अलेक्स आमंत्रित कर रहा हूँ कज़ालिक। आपके पास एक बार फिर से بالتأكيد। 7 मिनट का वक्त है। لكن هذا لا يعني أنه إذا كنت لا تعرف السبب وراء شيء शुक्रिया। فلا يوجد जनाब سبب. जावेद अख्तर साहब कई मर्तबा هذا दोहरा ما रहे हैं يسمى कि फेथ بالإنسان. का मतलब बताइए, फेथ का मतलब لا बताइए। मैंने أعرف، बता दिया لكنها फेथ ليست सही भी مسؤولية. होता है, गलत भी होता है। और لقد आज हम كان फेथ पे बात محقا नहीं कर रहे, تماما. हम ट्रूथ और डज गॉड एग्जिस्ट पे رفض बात कर रहे بأتون हैं। راسل क्या الأمر डज गॉड نازحا एग्जिस्ट, قائلا ये يا ट्रूथ أخي यानी أن गॉड تدعي है या شيئا. नहीं है, इसमें से दोनों ट्रूथ क्या है। لماذا अब आप علي उसे أن फेथ कह أقول लें, إنه बिलीफ कह लें, باطل؟ नॉट माई बिजनेस। أثبت उसके बाद ذلك. आपने कहा कि भाई सवाल करने لست से मजहब रोकता مسؤولا عن है। ذلك मैं कहता हूं जो لقد रोकता قلت है شيئا वो रोकता होगा, أثبت صحته. मैं नहीं هل रोकता। تود طرح बल्कि सवाल سؤال करें, حول حجة सवाल करना الاحتمال؟ चाहिए। सवाल कर करके هل तो हम आगे تود बढ़ते हैं, توجيه तरक्की سؤالي करते إلى हैं। المفتي؟ और इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। लेकिन لأن सवाल هذا सिर्फ वक्त खुदा से नहीं استجواب. होगा, आपसे भी होगा। सवाल كما एथिज्म से भी فهمت होगा, سابقا بخصوص सवाल सिर्फ मजहब से नहीं होगा, सबसे أود होगा। أن أسأل और आज मैं مهما सवाल كانت करूंगा और الثورات उम्मीद है कि आप التي जवाब देंगे। أحدثها अभी तक आपने वैसे لم يحدثها कॉन्टिजेंसी في आर्गुमेंट का دين कोई जवाब واحد، नहीं दिया بل है। चलें, في أديان आपने कहा كثيرة. यूनिवर्स के बारे में इटर्नल هناك क्यों नहीं बोल ثورات देते। مختلفة. ये चूंकि लॉजिकली بعضها पॉसिबल ही يختلف नहीं है عن कि यूनिवर्स الآخर. इटर्नल हो। यूनिवर्स एक وهناك कॉन्टिंजेंट تناقضات أيضا. चीज है जो टाइम بعض एंड स्पेस के الأماكن पाबंद है, टाइम एंड يمكنك स्पेस فعل से شيء، बाउंड है। وفي जो टाइम أماكن एंड स्पेस أخرى से لا बाउंड يمكن. होगा वो कॉन्टिंजेंट होगा। जो कॉन्टिंजेंट الأمر होगा كما उसकी لو أن बिगिनिंग हुई الجميع होगी, जिसकी لديهم बिगिनिंग نفس हुई होगी वो المبادئ इटर्नल नहीं हो الأخلاقية. सकता। ये तो कॉमन सी إذن बात है। ما هذه القصة؟ انظر إلى هذا. आपने أحياناً कहा أعتقد कि أن किसी نهائي मजहबी كرة किताब में القدم डायनासोर هذا का जिक्र नहीं है। يأخذه अफसोस कि ملايين आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का تتم जिक्र नहीं मिला। تغطيته تلفزيونيا من قبل ملايين الناس. तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की لو किताब أن बेकार है? سلطان नहीं, خرج उसका في वो تلك टॉपिक नहीं القصة है। قائلاً रेवलेशन का और मजहबी أن किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं या आकर ये बताए कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। रिलीजन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब سأسألك كيف خلق الله؟ لم لا؟ साइंस سأسألك كيف خلق؟ साइंस और साइंटिज्म में फर्क है। هو أذكى بكثير. साइंटिज्म ये है कि आप समझें कि هو موجود साइंस और دائما. साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ستقول ये नॉलेज को سأقبل. हासिल करने का वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज है। ये है ثانياً، साइंटिज्म। ذلك हम इसे रिजेक्ट القدر करते हैं। مخل. أي हम साइंस को तो तरक्की القدير करते हैं भाई। आप हमारी पूरी يستطيع तारीफ أن कर लें, يفعل ما पढ़ लें तो يشاء. आपको पता चल जाएगा। बहरहाल ये अलग टॉपिक يستطيع है। أن उसके बाद يؤمن इन्होंने एक لك लफ्ज कहा, وظيفة. वेटिकन ने फतवा दिया। वेटिकन का يستطيع फतवे से أن कोई ताल्लुक يرتب नहीं है, दोनों زواجكم कॉन्ट्रोडिक्टरी من अल्फाज عائلة हैं। صالحة. उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं يستطيع मालूम। أن يساعد अगर नहीं جارك मालूम على तो خسارة क्लियरली कह الكبد. देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या هو हरज है। يفعل तो كل वही شيء तो मैं من कह रहा हूँ ना أجل. कि आप कह दें कि नहीं मालूम, كيف लेकिन يدير क्लेम क्यों هذا कर रहे हैं कि गॉड العالم एग्जिस्ट नहीं कर रहा। بميكروفون صغير؟ كيف يعمل هذا العالم؟ ألا आप يثير कह दें नहीं هذا मालूम है, الشكل؟ हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप لديه क्लेम कर من रहे हैं। المعرفة द मोमेंट यू से والحكمة أكثر منه. गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ أفضل क्लेम يا سيدي. एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन لا، यू टू, لا، जैसे عن हमारे الله، ऊपर है। عن الأطباء. और क्यों है मैं أكثر बताता हूँ, تعليماً. क्यों है ये भी मैं बताता हूँ। أولاً फिलोसॉफिकली سأستمع إليه. जो
जो क्लेम होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कहे पॉजिटिव क्लेम करे और नेगेटिव क्लेम करे तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है।
आप मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि फुला उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया है, उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया, या तो मैं कहूं मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दिस इज नॉट अ क्लेम। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि वहां कोई नहीं है या मैं कह रहा हूं वहां कोई है, दोनों क्लेम है और दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, हमारे ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है, मैंने कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट दिया, इसे तोड़ कर दिखाइए। आखिरी चीज इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था। अरे हजरत चलें, बहरहाल मैं जवाब दे देता हूँ, आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं ऐसे एंटरटेन ही नहीं करता। टाइम ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज है जिनका ताल्लुक टाइम से है। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था, सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था, टाइम के बनने से पहले, पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से। दूसरी चीज आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी जो मैंने आपके सामने पेश की है, आपने बार बार ये प्रूफ किया और ये कह रहे हैं कि गॉड ऑफ गैप्स, देखिए पहले नहीं मालूम था, साइंस ने कर दिया। सिंपल इसकी मिसाल से मैं समझा देता हूं, जिस गैप्स की आप बात कर रहे हैं ना, साइंस उन गैप्स को जिन चीज के जरिए भी प्रूव करेगा वो कंटिजेंटी होगा, अब चाहे वो फोर्स हो, मैटर हो या एनर्जी हो। लिहाजा सवाल हमारा उस वक्त भी वैलिड होगा जब तक कि आप नेसेसरी बीइंग पे ना आ जाएं, और इन्फिनिट रिगरस पॉसिबल नहीं है ऑफ कॉजेज इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो जाहिर है कहीं रुकना पड़ेगा, जहां रुकेंगे वही खुदा है। दूसरी चीज आपने ये कहा, क्या कह रहा था الأمر الثاني هو أننا جئنا إلى هذا العالم لاختبار. نحن نخطط وكل شخص يختبر بطرق مختلفة. إذا كان الشر जहां रुकेंगे वही खुदा है। बहरहाल तो टाइम का जिक्र हो गया, गॉड ऑफ गैप, सॉरी इसकी एक मिसाल आप في مختلف المجالات. एक कार है, إذا لم يكن الشر موجودا فينا أو في هذا العالم فأخبرني ما جدوى الاختبار. सही जगह पे स्टीयरिंग जो है कितने अच्छे जगह पे लगी हुई, और सीट्स कितने वेल डिजाइंड है, कितनी प्रिसाइजली ये कार काम कर रही है, तो जरूर कोई ना कोई इसे क्रिएट किया है, किसी ने क्रिएट किया है। अब जावेद साहब आए और कह रहे जनाब बोनेट खोलिए, इसमें इंजन है, इंजन इस कार को चला रहा है, हेंस प्रूव नो वन हैज क्रिएटेड द कार, दिस इज इलॉजिकल, दिस इज इरैशनल। आपने इंजन के जरिए उस गैप को तो साबित किया, लेकिन क्या उससे कार की जो क्रिएशन है और उसका जो क्रिएटर है ये इम्पॉसिबल हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? उसका सवाल खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आपने गैप्स को फिल करके, कॉन्टिंजेंट चीजों से गैप्स को फिल करके हमारे ऑब्जर्वेशन को और ब्रॉड कर दिया। अब हमें और पता चल गया कि ये जो कार है इसका सिस्टम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पहले कम समझते थे, अब कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा वाज़ेह हो गई। अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारी सर्टेनिटी और बढ़ गई कि जरूर इस कार को किसी न किसी ने बनाया। यही मामला यूनिवर्स का है। साइंस हमेशा फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को ही फिल करती जाएगी और फिजिकल चीजों से ही करती जाएगी, चूंकि एम्पिरिकल एविडेंस का ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से। आप साइंस के जरिए मेटाफिजिकल रियलिटी को कभी साबित नहीं कर सकते। ये रॉन्ग टूल का इस्तेमाल करना है। ये वही काम है कि आप मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्टर करने चलें, जो कि जाहिर है सही नहीं है। थैंक यू। هناك جماعات في العالم تبرر الاغتصاب في ظروف معينة. ये आर्ग्यूमेंट का राउंड 2 है। 7 मिनट। पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं कि आपने कहा कि जब कायनात नहीं थी तो वक्त भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कैसे नहीं था? खुदा था। एक एग्जिस्टेंस तो था ना खुदा का। तो जब खुदा था तो वक्त भी होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं था, खुदा था। अच्छा, बाकी एक आपने कहा साहब आप साबित कीजिए, आपके पास भी लॉजिक है, मेरे पास भी लॉजिक है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है साबित करना कि खुदा है। बर्टन रसल ने बड़ी अच्छी बात कही। बर्टन रसल ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं आपसे अगर ये दावा करूं कि चाय की केतली मरीख के चारों तरफ घूम रही है, मार्स के चारों तरफ, तो ये आपका काम नहीं है कि आप साबित करें कि कोई चाय की केतली नहीं है। ये मेरा काम है, मैंने दावा। ये दावा तो मजहबी लोग करते हैं कि खुदा है। मैं क्यों साबित करूं कि नहीं? जब तक आप मुझे कन्विंस नहीं कर देते नहीं मानूंगा। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं।
दोयम ये نظام कि ये जो आप कह يتشاركون रहे हैं فيه जो نفس गैप है الرغبات ये गैप ويتعاونون जब فيما किसी بينهم. मजहब को चैलेंज करते हैं هذه هي जब الحياة. ऐसा कोई बात आती है तो سيدي हंगामा हो जाता है لقد وصلت إلى कि जब لذة वो चैलेंज करें किसी أن फेथ تقول إن الأفراد هم من ये سيقررون तमाम साइन الصواب जो है والخطأ. इसे मुख्तलिफ هذا ما जगहों पे تقرره الأغلبية. मुख्तलिफ वक्तों में بالتأكيد. मजहब ने रोकने की कोशिश إذا की है قالت ये الأغلبية किताब है أن العبادة الجماعية صواب पढ़िएगा كما अच्छी فعلت लगेगी مع आपको النية النازية तारीखी فستبررها حينها. मजहब की بعد साइंस से उसका यही ذلك रिश्ता كم من سكان الكوكب في अच्छा ذلك الوقت अभी سيعتبرون हम सोचें कि المسرح बहरहाल ये صوابا. वजूद जो है मजहब और ये حسنا बिलीव इन गॉड لقد इंसान قررت को बेहतर बना أغلبية देता سكان है الكوكب तो एक काम وليس कीजिए हिंदुस्तान المجتمع. वर्ल्ड का नक्शा लीजिए और أغلبية मार्क कीजिए कि سكان रिलीजन الكوكب कहाँ कहाँ يؤمنون जाता है بوجود الله. कहाँ कहाँ चाहे वो لماذا लैटिन لا अमेरिका हो تؤمن या أنت मिडिल ईस्ट بذلك؟ हो या फार جهلاً- ईस्ट हो या جهلاً- हिंदुस्तान के वो इलाके جهلاً। जहाँ मजहबियत ज्यादा है تنتهي جولة الاستجواب ردية نقشة هذه هنا अब ومن दूसरा الرائع नक्शा أنها कि कहाँ कहाँ مجزأة بهذه नाइंसाफी الطريقة حتى रिप्रेशन يتمكن औरतों के الطالب हुकूक की الصاعد पामाली من जुल्म الإجابة. डिक्टेटरशिप कहाँ है أغلبية سكان नक्शा एक الكوكب ही होगा। يؤمنون بإله دين آخر. तो لا आप أن मुझे تتحدث बताएं عن कि الأغلبية. जो इसका तरकीब أن इस्तेमाल क्या تقول है إن الأغلبية ستحدد الخير खुदा का والشر. तरकीब इस्तेमाल तो बताइए أيا आप छोटी كان सी ما दवा تفعله सड़क पे बेचते हैं उसकी भी الأغلبية तरकीब فسيكون इस्तेमाल صوابا. बताइए इसके इस्तेमाल से तो لنتبع फायदे नहीं होते الصيغة किसी को التي حددتها. जो सारे के सारे لقد وقفت खराब मुल्क بالناस हैं खराब الطيبين समाज हैं, وقررت वो सारे الاعتدال जुल्म खुदा के नाम पे करते हैं نعم वो गलत لديك करते हैं 5 सही करते हैं دقائق मुझे क्या لحديث लेना देना الختام. उससे इस्तेमाल بعد से मालूम ذلك होता ना एक سنتلقى विस्की أسئلة की من बोतल कभी الجمهور शायद بعد देखी हो حجة आपने جويد लाल صاحب रंग की होती है الختام. उस पर रोशनी और छपड़ा इंतहाई بدأ खूबसूरत الوقت. लगती है क्या बिगाड़ रही है किसी شكراً उसका جزيلاً. इस्तेमाल गलत है इसलिए आप उसे موضوعنا هو नापसंद करते هل الله موجود؟ हैं इसका इस्तेमाल गलत है لقد حضرت इस مستعدا تصور جيدا محضرا أكاديميا इस्तेमाल ही بشكل गलत है और مكثف. हमेशा से गलत हुआ है ظننت أنني देखिए سأقدم देख العديد लीजिए من देख लीजिए الحجج हिंदुस्तान देखिए दुनिया ولكن نظرا क्या हो لضيق रहा है الوقت وتجوال جويد صاحب इसे कैसे المتكبر इस्तेमाल कर रहे हैं اضطررت फेथ إلى वाले लोग مجاراته क्या قليلا. फेयर हैं لم just हैं أتمكن من जो अपने تقديم खुदाओं سوى पे यकीन حجة रखते واحدة हैं حول वो किस तरह هل के लोग الله موجود. वो लोगों को هناك इंसाफ العديد देते من हैं الحجج वो बेहतर وهي इंसान बने حجج قاطعة तो इस दवा का ولم फायदा يتم क्या है चलो قبول बहुत फायदा हो रहा حجتي तो أو मैं इस्तेमाल رفضها कर في लूंगा جولة واحدة मुझे तो इस दवा का कोई ولا फायदा दिखता حتى है في جولة واحدة मुझे तो ऐसा लगता है मैं ولا एक और حتى बात في बताऊं جولة अगर واحدة. कोई आदमी मजहबी है ولن और تأتي अच्छा حجتك आदमी तो मैं उसकी الختامية बहुत الآن أيضا. इसलिए कि من मेरा فضلك ख्याल है أخبر. मजहबी आदमी का अच्छा होना ماذا؟ मुझसे अच्छा होने से لقد ज्यादा ثبت मुश्किल خطأ है الإيمان بالآلهة भाई مرارا وتكرارا. हर चीज की एक लिमिट है आप يمكن इतना القول إنه भाग في सकते زمن इतना नहीं भाग إسفيلوس सकते इतना वजन كان उठा الجميع सकते नहीं उठा جاهلين. सकते इतना दूर देख آمنوا सकते بالله इतना दूर بنفس नहीं देख القناعة सकते. उसका التي कॉमन لم सेंस تعد कहता है موجودة. कि आप में नेकी का बीज وهذا फूटा हो. أيضا لن يكون موجودا. अब आप अगर सुबह जाते يمكنك हैं تدوين अपनी इबादत ذلك गाह وقد और بدأت इबादत करते بالفعل हैं तो बाहर ترى निकलते हैं دلائل तो على आप यही ذلك महसूस في करते हैं العالم. कि आपने एक बहुत अच्छा काम هل किया كان من आपकी الممكن नेकी أن का एक يدور बहुत बड़ा هذا कोटा النقاش खर्च हुआ على जिससे هذا किसी को النحو कोई قبل फायदा 100 عام؟ मैं तो नहीं जाता لقد हूं, وصلنا तो मुझे بك तो किसी إلى को هنا. खाना खिलाना पड़ेगा إذن किसी बेवा की يا मदद करनी سيدي पड़ेगी يا मैं अपना سيدي कोटा कैसे هو لا कर يحتاج إلى आप अपना مساعدة. कोटा सारे मजहबी إنه लोग रजुल इंतहाई मुफ्ती यूजलेस कामों में यूज करते हैं لماذا उसके बाद تساعد؟ भी अगर आप में बच्चे थोड़ी يا सी शराफत سيدي तो भाई يا वाह, क्या سيدي يا سيدي من فضلك كل هذه الأمور في مكانها الصحيح. एक तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि दोनों ही विद्वान لست الشخص समय الوحيد को الذي मानते हैं يؤمن بالله. और बहुत वहाँ समय से ذلك अपनी कथन दलीलें और कथीरा मिन अल-अदब. बाज दफा समय से पहले अजवात अपनी मुख्तलिफा. तकरीरें पूरी करके अपनी अपनी कुर्सी पर हम बैठ रहे الوحيدون हैं الذين ये أبعدوا دائما इस في आर्ग्यूमेंट का المجتمع. राउंड 2 पूरा हुआ أقدم अब لك रिबटल عرضاً का राउंड 2 صريحاً है और उसके बाद آمن क्रॉस بأن एग्जामिनेशन القرن होगा عشر مهم في العالم. أن नहीं, تؤمن आपका argument हो بالرقم गया, واحد لكنك لا تؤمن بالرقم 9. हमारे यहाँ स्कूल أنت के सिलेबस ملحد में بين पंच التسعة. परमेश्वर कहानी पढ़ाई जाती है أنت प्रेमचंद जी की تسعة लिखी हुई عقلانيين आप निश्चिंत रहिए مثليين आपके कोई تماماً. राउंड में मिस नहीं होने दूंगा रिबटल का राउंड 2 حتى मुफ्ती الشخص शमाइल नदवी साहब. المتدين بنسبة 90% هو ملحد بنسبة 90%. فهو لا असल يؤمن में بأي जो إله हकीकी آخر. प्रॉब्लम है असल प्रॉब्लम है वो ये है يؤمن कि بإله जावेद साहब واحد. के पास إلهه هو कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ويصف क्लियर الآلهة नहीं है. الأخرى بالخلق. इन्होंने कहा कि कायनात إذا से पहले توقفت खुदा عن तो था तब भी तो الإيمان टाइम تماماً होगा فهناك कि احتمال खुद بنسبة कायनात 10% टाइम أن تكون कायनात على का صواب. हिस्सा है واحتمال हम खुदा بنسبة उस खुदा को 90% मानते हैं أن नेसेसरी تكون बीइंग على का خطأ. टाइमलेस होना जरूरी है क्योंकि वो टाइम का नसीहती क्रिएटर है है, जब إذا उसने टाइम को توقفت عن क्रिएट किया तो वो الإيمان खुद टाइम पे कैसे فهناك होगा احتمال उसने जब بنسبة स्पेस को क्रिएट 50% किया
किया तो खुद स्पेस में कैसे होगा? अगर वो टाइम एंड स्पेस को पहले से ही उसका पाबंद है तो फिर किस चीज को उसने क्रिएट किया? लिहाजा ये सवाल गलत है कि खुदा था तो टाइम होगा, बिल्कुल नहीं।
टाइम के पाबंद हम हैं, खुदा नहीं है। हम फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो मेटाफिजिकल रियलिटी है। दूसरी चीज इन्होंने मिसाल दी कि चाय की केतली हवा में घूम रही होगी, और पता नहीं शायद वो बर्टन रसेल का उन्होंने हवाला दिया। बहरहाल यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है कि हम चीजों के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ये जो आपने मिसाल दी है इमेजिनेशन है, और मैं जो साबित कर रहा हूं वो लॉजिकल नेसेसिटी है। आप इमेजिन करना है तो कुछ भी करें, जुपिटर में पिंक एलिफेंट होगा, यूनिकॉर्न होगा, करें। उससे कायनात में क्या फर्क पड़ता है? उससे आप लॉजिकल नेसेसिटी साबित नहीं कर सकते। मैं तो उस प्राइम कॉज की बात कर रहा हूं, उस नेसेसरी बीइंग की बात कर रहा हूं जिसके बगैर इस कायनात का एग्जिस्टेंस मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज, मजहब को साइंस चैलेंज करती है वगैरह वगैरह, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। मैं इस पे बात करूंगा तो फिर मेरा वक्त चला जाएगा। मजहब के ऊपर चूंकि हमारे डिस्कशन नहीं है, साइंस को मजहब और बिलखुसूस मैं और हमारा वर्ल्ड व्यू कम अज कम साइंस को पीछे नहीं करता है, साइंटिज्म की मजम्मत करता है। इसकी वजाहत मैंने पहले कर दी। दूसरी चीज इन्होंने कहा वर्ल्ड का नक्शा लीजिए, वर्ल्ड मैप लीजिए, तो अलग अलग जगह की। हजरत मैंने ये होमवर्क किया था और मैंने मिडिल ईस्ट का एक नक्शा लिया और यूरोप का एक नक्शा लिया। ये मजहबी इलाका और ये लिबरल और एथियस्ट इलाका। मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा रेप केसेस जो है वहां पर। मुझे ये पता चला यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं अपने घर से नहीं कह रहा, कि जो वर्किंग वुमेन है यूरोपियन कंट्रीज में, उसमें 81% वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट का वर्क में। ये मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा है, वो मजहबी लोग हैं इसलिए नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, आपने ये कहा कि मजहबी आदमी का अच्छा होना हमारे अच्छे होने से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब यह है कि गॉड के अलावा आपके पास अच्छे और बुरे का कोई स्टैंडर्ड है। मैं चाहूंगा कि कन्वर्सेशनल स्टाइल वाली डिस्कशन और सेगमेंट पे इसी पे बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये रिबटल का राउंड 2 है, आपके पास 5 मिनट का वक्त है और इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करेंगे। आप चाहे तो जो इन्होंने सवाल पूछे उनके जवाब आप रिबटल में भी दे सकते हैं। देखिए, पहले तो ये बात कि ये इन्होंने पहले ही हमको डिसार्म कर दिया। पहले अकल से मामला सॉल्व नहीं हो सकता, लॉजिक से आप पहुंच नहीं सकते। ये एक मेटाफिजिकल चीज है। मेटाफिजिकल अजीब सा लफ्ज है, ठीक से किसी को माने नहीं मालूम, तो ऐसा लगता है कोई बड़ी चीज है। अरे भाई, क्या होता है मेटाफिजिकल, बताओ। ये एक लफ्ज है जो कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है। जब आप एक बात कर रहे हैं और आप मुझसे बहस कर रहे हैं तो मुझे मेटाफिजिकल मत बताइए, आप लॉजिकली मुझे प्रूव किए। और अगर लॉजिकली आप नहीं बात करते सब ये मेटाफिजिकल है, तो फिर हम बात क्या कर रहे हैं? मेरा आपका किस जबान में कॉन्वर्सेशन? और ये कहना कि वक्त पहले नहीं था, तो फिर क्यों कहते हैं ये हमेशा से हमेशा रहेगा? हमेशा वक्त, तो आप कैसे कहते हैं वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा? हमेशा का मतलब है कोई वक्त। अगर वक्त ही नहीं है तो हमेशा कैसे? فسيكون هناك تناقض بين حكمة الله وإرادة الحق. अब मैं ये देखता हूँ, आपने कहा ना कि वहाँ रेत ज़्यादा होती है, أعارض ما يحدث في غزة فأنا أعارض إرادة الله وحكمة الله هي التي يجب أن حقيقة من فضلك يا يسوع سيدي، هذه هي حكمة الله أن لا يحدث في غزة يحدث بالفعل. أنا أعارضه، لذا فأنا أخالف حكمة الله. سؤال واحد. ثانيا، لا لديك سؤالان للفهم. أولا يا سيدي، يمكنك طرح المزيد من الأسئلة لكن أعطني إجابتين. أولا قلت استمع إلي كل شيء يسير كما هو مخطط له، أليس كذلك؟ لا، ليس كذلك. الأمور لا تسير على ما سأخبركم بما يحدث. من فضلكم قفوا هنا، سأخبركم بما يحدث. دعوني من فضلكم. لحظة يا رفاق، لحظة. तुम तो वहाँ गजा में रहे होगे ना, तुम्हारे जगह तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियां उड़ गई। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी तफ्तीश करूं? تقوم بعمل مهم للغاية لكن تعطل هذا العمل بدخولك في إطار الكاميرا. कुछ तो ख्याल करते हैं।
حسنا يا معلم كان علي أن أفرغ आप किसकी इबादत कर रहे हैं? अगर वो है भी, آسف لا ये दुनिया لست غاضبا नाइंसाफी से, जुल्म से, إذن जबर से, الأستاذ طرح तशद्दुद से भरी हुई أسئلة أجب عنها और आप ये मत कहिएगा कि वो देख هؤلاء रहा है الأشخاص और वो من बताएगा एक فضلكم दिन। كونوا अगर वो حذرين देख रहा है और قليلا इंटरफेयर नहीं يا करता तो आप दुआ क्यों أخي मांगते? اجعلوا الأسئلة مختصرة आप कहते हैं मेरा ये काम करा दे, लक़द इसका طرحت मतलब है वो سؤالي। दखल दे सकता है, أولا वो قلت आपको إن नौकरी لدينا दिलवा مفهوم सकता أن है भले هذا दूसरे الكون आदमी को न نفسه मिले, كائن ضروري मगर आपका काम कर देगा क्योंकि الخلق आपने दुआ نفسه मांगी هو है। الخالق तो जब वो आपको ما मदى नौकरी दिला قصدية सकता है, هذا؟ लड़की की शादी कर सकता है, أنني बेटे को سأوجد له ग्रीन कार्ड दिलवा सकता है, لكنني موجود तो أيضا कम से الآن कम ये जो मर रहे हैं बच्चे, هذا इनको يعني रोक के أن- कुछ तो करे। ها؟ मुझे तो दुनिया में इस दुनिया का لقد कोई मालिक طمأنت है, نفسك بشأن इसका ذلك omnipotent إنه موجود कोई रूलर دائما है और ये दुनिया ऐसी चल रही إذا है। كنت تعتقد أنه मैं तो موجود चाहूंगा دائما कि भाई ना فلماذا हो। تعتقد أن अगर الكون हो तो बड़ी موجود शर्मिंदगी دائما की बात है। إذا शुक्रिया। نحن لا نوجد بل نحن موجودون نحن غير देवियों موجودين। सज्जनों, इस बहस के حسنا दो राउंड سيدي और दो रिबटल पूरे हो चुके لماذا لا हैं। نكون अब موجودين सबसे जरूरी और सअशरफ। सबसे मुश्किल राउंड शुरू हो रहा है क्रॉस كما एग्जामिनेशन أعطيتك का। مثال بيتك अब इन الشعري। विद्वानों की सज्जनता की एक परख भी होगी और वक्त हमने 16 मिनट का لو तय किया استمر है। على هذا النحو إلى الأبد पहला सवाल आप पूछना चाहेंगे? نعم مي जी बिल्कुल, لا أعتقد أن مفهوم التسلسل اللانهائي كان واضحا आप माइक ले लीजिएगा। हाँ। دعه كما هو لنكمل حسنا نعم जी من मैं فضلك اعتني قليلا بالمذيع ये दाएं से لا जा सकते हैं क्या? لا أنت थोड़ा من quickly। سأل أنت من سأل दाएं से पीछे कर दीजिए السيد बस थोड़ा جوهر सा, رضا موجود هنا ताकि ये जो ويريد दाएं बाएं लोग أيضاً बैठे طرح हैं سؤال इसे हटा ही दीजिए वरना वहाँ شغل पे जाने वाले हैं। الميكروفون من المسأل आराम से आराम से। أولا اسمح لي أن أقول إنني أشعر بالخجل من الأطفال الذين قتلوا في غزة لأنهم قتلوا أمام أعيننا لكن ما أحرجني इस बीच आप लोग भी अपने अपने सवाल तैयार कर लें। صاحب كان ये ध्यान रखेंगे कि मैं यहाँ से सवाल दूंगा, आप लोगों को अपना हाथ ऊपर करना है, अपना नाम बताना है और अधिकतम 3 वाक्यों में अपना सवाल पूरा करना है। कई लोग सवाल की जगह भाषण देने लगते हैं, उससे आज बचना है। لحظة إذا जी قلت شيئا मुफ्ती साहब, كهذا पहला सवाल आपका, 16 मिनट है, हम दोनों लोगों के सवाल लेंगे। जी انتظر बहुत शुक्रिया। أطرح आपकी وجهة जो अभी बात نظري रही قبل बहुत أن अहम थी, أفعل. मैं इसको चाहूंगा कि आगे डिस्कस إذا करूं, قرر الجمهور लेकिन चूंकि فلا अभी داعي वो للمحاور सेगमेंट है क्रॉस एग्जामिनेशन, أريد أن أقول لكم तो جميعا هذا सबसे النقاش पहला بين सवाल आपसे ये شخصين. है कि जो मैं इतनी من देर جهة से المفتي कॉन्टिजेंसी صاحب आर्ग्यूमेंट ومن आपको جهة बता أخرى रहा था, جويد ये صاحب. अकल से ही बता रहा था हजरत। على आप مدار ये बताएं الساعة والنصف कि الماضية आप इन्फिनिट كان रिग्रेस هذان ऑफ कॉजेस الشخصان को पॉसिबल يطرحان मानते हैं या حججهما. नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही قد समझते हैं, क्योंकि दो ही تتفقون ऑप्शन हो معهما सकता है। أو لا आप ये बताएं। علمني देखिए, आपको मैं أستاذي أنه ईमानदारी से يجب बात أن करूं, يكون एक तो मैं هناك مجال contingency word للاختلاف ठीक في الحوار المباشر और इस वक्त भी जो आपने أنا अंग्रेजी के أحترمك अल्फाज كثيراً. इस्तेमाल किए वो जरा سيد थोड़े से غور، मुझे لقد डिफिकल्ट और كتبت कॉम्प्लिकेटेड كتاباً लगे, رائعاً तो आप जरा بعنوان सिंपल जबान में सवाल कर المزاج सकते العلمي. हैं। बिल्कुल कर सकता हूँ। जी لكن यूनिवर्स طلبي की हर منكم चीज جميعاً هو कॉन्टिजेंट होने का أنه मतलब إذا ये है कि علقتم वो على अपने ما एग्जिस्टेंस قاله में किसी هؤلاء के ऊपर الأشخاص डिपेंडेड है। فلن जो भी تكون चीज هناك डिपेंडेड قيود होगी زمنية वो أو चीज متطلبات इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। يمكنكم طرح तो अब الأسئلة आप क्या समझते أياً हैं كان कि ये ما इन्फिनिट يطرح في रिग्रेस السؤال. है, यानी يمكنكم कॉज पर कॉज, طرح. कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, أنا और لا कभी कोई أتفق مع यानी السيد एंडलेसली جوي. चलता रहा, क्योंकि ولهذا अगर ऐसा السبب होगा तो हम أسأل तो السيد एग्जिस्टेंस में आते ही جوي. नहीं। लॉजिकली سؤالك موجه मुत्तफक अलैह للسيد चीज है, جوي. मुत्तफक अलैह अग्रीड अपॉन। سؤالي هو أن السيد جويد استخدم इस पे हमने एग्री किया था कि मुश्किल शब्द आएगा तो अर्थ बताना पड़ेगा। तो इन्फिनिट रिग्रेस तो पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा ऐसे नेसेसरी बीइंग पर। नहीं कोई जरूरत नहीं لكن रुकने की। أساس किसने कहा هذا रुकना المنطق पड़ेगा? هو आप रुकते हैं खुदा التوقف पे, وهو ما ذكره السيد आप नहीं جويد रुकते, आप مرارا. कहते हैं वो हमेशा से أي जब उस वक्त التوقف से है जब عند वक्त नहीं مفهوم था। الله وطرح आप कहाँ الأسئلة रुकते في हैं هذا कि السياق अब हुआ था वो, आप नहीं कहते। السؤال हम هو क्यों नहीं मान هل सकते कि يوافق यूनिवर्स जो السيد है جويد और على أن बल्कि منطق العلم मल्टीवर्सेस जो يختلف है عن منطق वो हमेशा से हैं, वो बनती है, सब बिगड़ती contingent है, है। सही एक हमारे यहाँ एक انظر، चीज है هناك ثلاث ब्लैक أشياء. होल, वो समेट लेता है वापस, هناك फिर العلم ब्लास्ट होता है, फिर وهناك फैल المنطق जाता है। ولا और شك इसमें हमारी तो खैर هناك कोई औकात ही الإيمان नहीं है इंसान की। وهناك एक الاعتقاد. छोटे से जर्रे पे हम أنا लस्त 50-60 साल की مقتنعاً उम्र بمنطق الاعتقاد. रखते हैं, जो करोड़ों अरबों साल أرجو की أن تشرح لي. कायनात है उसमें, لا أشعر और पैदा भी بالانجذاب. निहायत ही बेहुदा वजह ما से هي हुए थे। مناسباتكم तो- الاجتماعية؟ तो इसमें है ये يقولون सोचना إن कि इसकी المتدينين वजूहात أتباع क्यों है, الديانات المختلفة ये डिपेंडेंट है, ये يقيمون हम देख العديد रहे من हैं। क्या الاحتفالات मालूम, आप सोचिए कि ये जो फैल रही है कायनात,
ये कहाँ دعوني फैल रही أخبركم है, بواحدة ये कहाँ जा रही है يوجد और ये फैल क्यों रही है? अरे مؤرخون बना هنا ली थी तुमने, रुको भैया काफी है, مريدولا ये هل फैल هذا क्यों रही صحيح؟ है? ये और कौन सी كان कायनात هذا जिसे मैं قسطنطين दूरबीन से देखता हूँ तो إمبراطور 2 روماني बिलियन يوناني लाइट ईयर पे है, قرر उससे بعد मेरा कोई 400 वास्ता ही عام नहीं من है. وصول 2 बिलियन المسيحية ईयर إلى السلطة यानी अगर मैं اعتناقها 80,000 مملكته माइल्स पर सेकंड से चलूं في तो ذلك الوقت 20 करोड़ साल में كان वहां الوضع पहुंच जाऊंगा. كالتالي أيا इसकी كان जरूरत الدين क्या الذي थी? يختاره ये दुनिया, الملك ये कायनात तो इंसान يتبعه अशरफुल मखलूकात के लिए बनाई गई है. لأنه أفلس तो ये واحتاج सब إلى ये المال من terms التجار समझ में नहीं المسيحيين الأثرياء على ساحل البحر الأبيض इसमें कोई खास المتوسط. समझने वाली बात थी भी नहीं. فقال تعتنق المسيحية ये जो अल्टीमेट कहा यह जाता है कि ये जो पूरी يا أخي، यूनिवर्स है, ये هذا जो दुनिया है, ये تاريخ. इंसान के लिए سنعتنق बनाई गई المسيحية है. الآن ये सब इंसान के लिए. क्यों साहब, सही है ना? فقال बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी चीज के पीछे रीजन आपको नहीं पता तो रीजन नहीं है, इसे कहते हैं नहीं नहीं argument from नहीं, limited मुझे perspective. मुझे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं है. वो बिल्कुल सही कहा था उसने. बटन रसल ने आपने उसे मजाक में टाल दिया कि भाई आप एक दावा कर रहे हैं, मैं क्यों कहूं कि ये गलत है दावा? आप प्रूफ कीजिए, मेरे पे जिम्मेदारी ही नहीं है, मैंने थोड़ी कहा يستمتع है. الناس आप بأيام प्रूफ कीजिए कि ये عديدة सही. وخاصة आप argument of الخامس والعاشر. contingency आप का जवाब कोई ही नहीं सवाल दे रहे. पूछना चाहेंगे? आप نعم. सवाल पूछना चाहेंगे أنت मुफ्ती साहब से? متى كان क्योंकि ये ميلاد क्रॉस يسوع एग्जामिनेशन का दौर المسيح है. आप जैसे पहले बोल रहे थे फेथ को लेकर سيدي कुछ. मैं كان ये في पूछना أبي चाहूंगा कि لا खुदा ने जो भी रेवलेशन किए हैं, إنه एक في मजहब के लिए الخامس बहुत से والعشرين मजहबों में من किए हैं. दिसंबर. अलग अलग रेवलेशन है, هذه कहीं هي कुछ एक बातें हैं, الحقيقة. कॉन्ट्रडिक्शन وبعد भी है 400 आपस में. عام نقلت कहीं कुछ المسيحية आप कर सकते لاحقا हैं, من कहीं कुछ أبريل नहीं إلى कर सकते. ديسمبر ऐसा नहीं है कि وذلك सबकी لأنه كان कोड ऑफ هناك मॉरल एक है. مهرجان وثني तो الآن تحتفلون به براحة. ये كانت جميع هذه किस्सा क्या المهرجانات है? دينية في अब الأصل. आप ये देखिए कि मुझे कभी कभी يحتاج लगता है कि الجميع जो إلى फुटबॉल قسم फाइनल होता ترفيه है, لإدارة شركة लाखों लोग होते हैं, फिर वो टीवी कवर لذلك कर करोड़ों تم लोग. استغلال अगर उसमें هذه खुदा की एक المهرجانات भूमि आवाज आ العالمية जाती, من قبل الأديان. मैं गॉड हूँ, كانت तो هذه सारे लोग المهرجانات भी सुन लेते الموسمية और टीवी पे भी सुन ومحاصيل लेते. किस्सा खत्म होता. ومزارعين. ये इतनी राजदारी لقد क्या है कि तुम أخذتموها सामने وأخفيتم कुछ तो عليها सबूत दे दो طابعاً हमें علمياً. सॉलिड. ये لم जैसा कि يأتي यूनिवर्स هذا के من लिए أي تعديل. इससे मसला क्या हल होगा? كما मैं पूछूंगा تعلم आपसे खुदा कैसे نحن बना? क्यों नहीं مسلمون. पूछूंगा? कैसे نحتفل बना? بعيد बल्कि वो तो कायनात से कहीं ज्यादा نحتفل इंटेलिजेंट بعيد है, ديوان. कायनात से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स. जी वो نحتفل हमेशा से. بعيد هولي. सही आप कहेंगे मैं मान نحتفل लूंगा. بعيد الميلاد. अच्छा दोयम वो कादिर نحتفل मुखलक بأكبر यानी احتفال कादिर بعيد मुखलक هولي في मतलब صناعة ओमनी السينما पोर्टेंट. في مومباي वो في जो منزل. चाहे कर सकता है. आपको नौकरी दिलवा يحتفل सकता है, بأكبر आपकी عيد जगह فطر शादी في करवा منزل. सकता है, आपके هذا पड़ोसी جزء من को تقاليدنا कदमा हरवा الاجتماعية. सकता है, आपको जिता सकता है, सब करता है. لدينا تراث थोड़ा सा माइक क्लोज जी. वो لن نتخلى इस عن كل दुनिया को شيء चला कैसे रहा حتى है? لو كان ثمينا. ये दुनिया कैसे चल रही هذه है? أشياء आपको इस पे हैरत नहीं قيمة होती? فلنحتفظ या بها. कयामत के बाद कभी ولنتخلص एक من जस्टिस غير होगा ضروري. जब ये बच्चा جاء मर चुका ذلك होगा, من शخص जिसकी दतिया उड़ गई बम से, وإلا इसको فإن इंसाफ جاوود मिलेगा. صاحب सब. يقول إن الأغلبية अच्छा. هي من ستقرر. हाँ दीजिए. मैं वही इसीलिए ففي النهاية يمكن सबसे पहले आपने للأغلبية أن रेवलेशन और تتغير في स्क्रिप्चर्स की أي बात की. इस पे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन आज नहीं करूंगा क्योंकि वक्त कम है. कभी और इस पे डिस्कस करेंगे. मैं तैयार हूँ उस पे भी बात करने के लिए. ये अभी से राउंड 2 की भूमिका तय हो रही है. لم Does أقصد God أبداً exist أنه राउंड إذا 2? قررت الأغلبية चूंकि आज गॉड के فسيكون एग्जिस्टेंस على पे बात है, तो मैं उसी के रिलेटेड जो है आपके أنت सवालात من قلت को هذا एंटरटेन भी الكلام करूंगा और मैं भी पूछूंगा. आपने يكون कहा कि جيداً. आपने साबित ही नहीं किया, أتفق जबकि معك. आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी बुनियादी سنراجع الأمر आर्ग्यूमेंट है. لاحقا. आप मुझे कॉन्टिजेंसी का मतलब बताइए. مهلا आपका मतलब क्या कॉन्टिजेंसी? فضلك دعني कॉन्टिजेंसी का मतलब ये हुआ الفكرة कि هي أننا हर वो جميعا वजूद نعرف في जो قرارة किसी भी أنفسنا चीज का ما هو पाबंद है, الخير وما هو हर वो الشر. वजूद या हर वो चीज जो नारिफुहु अपने जय्यदन. एग्जिस्टेंस में किसी भी चीज حتى के أولئك पाबंद الذين है يفعلون और उससे الشر बाउंड है, يعرفون उसको ما उसकी هو الخير. जरूरत है, उस पर डिपेंड करती है, كان तो هذا जाहिर هو सी बात है कि السؤال उसका يا कोई ना कोई سيدي. कॉज होता है. من ये أين तो अकल أتت की बात هذه है. الأخلاق؟ ये आप रीजनिंग की बात करते हैं, मैं वही कर रहा हूँ. दूसरी चीज نعم आपने يا ये बात سيدي. कही कि الأخلاق تنبع इतने من الرغبة बिलियन في लाइट العيش ईयर्स معا. दूर है, उसका मेरा هذا क्या लेना يعني देना? أن फिर मेरे كل ख्याल ما से आपको ये नहीं نقوله कहना أو चाहिए نفعله आई एम أثناء आई عيشنا थिंक देयरफॉर معا आई एम एन سيتحقق. एथिस्ट. आपको सोचना चाहिए. لا. सिर्फ आप إذن एक लिमिटेड दायरे में لا रहकर يمكن नहीं العيش सोचे, बल्कि وفقاً बाहर निकल कर للقواعد सोचे. إلا إذا आपने كان तीसरा الناس सवाल किया, يتمتعون. आपने 2-3 सवाल एक ये साथ ऐसी बातें ना कीजिए, कुत्तों को وإلا इतराज हो जाएगा فسيكون आप पे هناك कि आप استجواب. कुछ भी सोचिए. كيف ये تعرف इजाजत هذا؟ आपको है नहीं, نعم मुझे है. لقد رأينا متى تكون الأخلاق صحيحة. ما رأينا حدث ذلك.
आपने प्रॉब्लम ऑफ इविल के ताल्लुक से सवाल किया और बार बार आप एक लफ्ज रिपीट कर रहे हैं कि ओमनीपोटेंट गॉड है, ऑल पावरफुल गॉड है। यही तो दरअसल समझना है कि गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रॉब्लम ऑफ इविल जो है, प्रॉब्लम ऑफ इविल दर हकीकत दो असम्पशंस पर कायम है। अगर आप इन दो असम्पशंस को समझ जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आर्गुमेंट आपको समझ में आ जाएगी कि ये कोलैप्स करता है। पॉइंट नंबर 1 यानी जो आपका सबसे पहला फॉल्स असम्पशन है कि गॉड मर्सीफुल है, ओमनीपोटेंट है, दुनिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक गॉड सिर्फ ओमनीपोटेंट और सिर्फ मर्सीफुल नहीं है, बल्कि वो ऑल वाइज भी है और वो ऑल नोइंग भी है। उसके हर काम के पीछे हिकमत और विजडम है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हिकमत और विजडम आपको समझ में आए या मुझे समझ में आए। अगर आप जो समझ रहे हैं उसके मुताबिक आप फैसला कर रहे हैं, ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आर्गुमेंट है। और इस चीज को हम अपनी दुनिया में, अपने लाइफ में, डेली लाइफ में इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर वो अगर उसने हमें कोई दवाई दी है तो हम ये तो नहीं कहते कि जब तक आपके पास जितना नॉलेज और जितना विजडम नहीं है, आपने क्यों ये दवाई दी है, तब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं कहते, हम उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हम जानते हैं कि वो नॉलेजेबल है, वो विजडम वाला है, हमसे ज्यादा नॉलेज और हमसे ज्यादा विजडम है। बताएं सर। डॉक्टर में तो मैं उसकी बात सुनूंगा। कुछ जवाब तो ये भी नहीं है सर। प्लीज अगर सब ऑडियंस से बोलने लगेंगे तो फिर मतलब नहीं सिविलाइज्ड बहस का। मतलब आप ये कहें कि क्योंकि आप डॉक्टर पे बिलीव करते हैं, इसलिए खुदा पे बिलीव किए क्या? ये मिसाल आपको समझाने के लिए। اسمع السؤال جيدا. इस पे आपको इतराज नहीं है? لا يمكن إثباته بالعقل. तो هذا ما قلته सिंपल बात ये أليس है كذلك؟ कि मैं अगर ये यकीन يمكن إثباته करूं कि بالعقل. ओमनीपोटेंट उसकी मसलहत है, هذا ما ये जो बच्चे मर يقوله रहे हैं ये मसलहत है, أن تقول لي मुझे नहीं إنه चाहिए इसकी मसलहत। उसकी मसलहत नहीं, هذا यही तो شيء समझ रहे हैं। آخر يا मतलब سيدي. एक्सपीरियंस। انظر يا इस شاب. आपने अभी मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने कहा आपका पूरा आर्ग्यूमेंट दो फॉल्स असम्पशंस पर। एक फॉल्स असम्पशन मैंने बता दिया, दूसरा फॉल्स असम्पशन ये है कि इस दुनिया में इविल के होने का कोई गुड रीजन नहीं है, जबकि हमारे पास बाज रीजंस मौजूद हैं, हमारे पास बाज वजूहात मौजूद हैं। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप राइट को समझेंगे कैसे? अभी और सुन लें, अभी और बाकी है। ये तो बात बहुत पसंद आई कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल रखना। आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की इज्जत। आपने पूरा जवाब सुना ही क्या नहीं। बात? क्या आपने नुक्ता निकाला? आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। आप सुन लें, मेरी बात सुन लें। ये मैंने आपको एक चीज बताई। दूसरी चीज, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है। जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है। लेकिन जी बिल्कुल तो बिल्कुल खुदा ने बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल है, तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी मैं बता रहा हूं। मेजॉरिटी में वो है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मैं बहुत कोई भी जो होगा, चाहे आपका अपना घर हो जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर आप इविल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं। मेरी बात सुनिए, क्या ये आर्गुमेंट ही गलत है? अगर जब तक के कोई इविल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी शरीफ नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया। जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा सुनिए मेरी बात, लेट मी कंप्लीट सर। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। أريد أن أسأل يا صاحب سؤالا واحدا.
इंसान के أن फ्री विल का التناقض جويد صاحب مرارا وتكرارا ये قائلا रेप إنك कैसे قلت गलत هذا इस्तेमाल وذاك. होता है ये मुझे अब सुन ले हाँ मैं बता रहा हूँ कि जो इविल इस दुनिया में मौजूद है उसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है। अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है। ये फ्री विल का भी बड़ा चक्कर। يستخدمون إرادته आप जब कोई बुरा काम करते हैं, कोई बुराई होती है, तो ये कहा जाता है कि ये फ्री विल يعني है। أن الله قد 7 منح الجميع billion free الإذن wills are moving باستخدام on هذه this أبشع planet. الطرق وأكثر 7 شرا. billion free wills. और عندما एक تسمع आदमी عن अपनी फ्री حرية विल से मुझे الإرادة، कत्ल कर दे هل तो تؤمن मैं खुदा بها की أن मर्जी से تنفي मरा हूं कि इसकी وجودها؟ फ्री विल की वजह से। ألا تؤمن بها؟ मेरी मौत खुदा के أنا हाथ है أؤمن या بها. ये फ्री विल वाले के हाथ? إذن ليس खुदा ने لديك फ्री विल تفسير का निजाम बनाया है और उस निजाम का गलत इस्तेमाल करके कोई आपको मार रहा है, इस्तेमाल करके मेरा कत्ल कर ارتكاب देता خطأ है। ثم अब मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है? वो इंसान जिम्मेदार في है। نظرتنا जी. للعالم ये कहना من और उसको सजा मिलेगी। तो अब आप أي आगे نتيجة कि سيئة ये तय करना ومن कि يفعل अल्लाह ही الصواب या खुदा سينال सॉरी جزاء अल्लाह عادلا. खुदा ही जिंदगी देता है, खुदा ही मौत حرية देता है। ये الإرادة موجودة बिल्कुल गलत नहीं है। أن الله नहीं, नहीं, निजाम उसी ने बनाया फ्री विल का, निजाम मौत और हयात तो उसी ने बनाया। जो है وكأنك contradicting منحت yourself. حرية अभी مطلقة आपने कहा कि لتفعل एक ما आदमी ने تشاء फ्री إلى विल الأبد. से आपको मार दिया, سيأتي इसमें الوقت उसे الذي फ्री विल दी ينتهي गई थी, فيه उसने गलत इस्तेमाल किया। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लैनेट और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ खुदा का ध्यान करूं। ये 7 बिलियन फ्री विल्स को मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो तबाहियां कर रही हैं और तबाहियां ज्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बताएं अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, हाँ. तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए, दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं। एक जो अकेले रहते हैं जंगल में और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग क्या करेंगे? अगर लोगों ने यह तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, लोग आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज मानते हैं सर्टन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे, जिन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि इविल को आप डिफाइन करते कैसे हैं? आइए वापस आइए। जी, आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को कोई आराम मिले। यही तरीका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है ज़िंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियाँ आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का, और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है। और ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह से फ्रेगमेंट कर दिया गया ताकि जो मरकरी ऊपर जा रहा है जवाब दे दूं। जी, प्लेनेट की ज्यादातर मेजॉरिटी कुछ दूसरे मजहबों के खुदा को मानती है। आप उन्हें क्यों नहीं, आप तो मेजॉरिटी की बात कर रहे अच्छा, हैं। ये क्लोजिंग आप ये कह रहे हैं इविल और गुड को डिसाइड मेजॉरिटी करेगी। मेजॉरिटी जो कर दे वो सही हो जाएगा। इसको जैसा आप ही लोगों ने तय किया है उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। भाई मैंने तो भले लोगों पे एतबार किया और तब मॉडरेशन तय किया।
जी आपके पास 5 मिनट का वक्त है, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद हम ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर लेंगे जावेद साहब के क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट के बाद। ओके, बहुत शुक्रिया जी। हमारा जो टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, मैं इस पे इतने एकेडमिक तैयारी करके आया था, मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार बार इधर उधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया। डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दे पाया, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रेफ्यूट नहीं किया, एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं, और ना ही अभी आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट आएगा, नहीं वो बता देना। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी सर। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कंटीजेंसी का मतलब अब मैं कैसे समझाऊं आपको आपस में? हाँ आप और कितने आसानी से समझाऊं मैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। आप अपनी आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटीजेंसी उर्दू में बोल सकते हैं। हाँ आप अपनी बात पूरी कर लें जी, आखिरी 4 मिनट। दूसरी चीज, जस्ट अ मिनट प्लीज मैम, कैन आई टॉक? दूसरी चीज ये है कि आपने एक तो इसका जवाब नहीं दिया, दूसरा आपने गॉड के ना होने पर कोई डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं आप। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था, आज तो हमारा टॉपिक हो आप मजहब से ले लेकर आईएस तक चले गए। भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे? वी कंडेम देम। और उसका गॉड से क्या ताल्लुक है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी का रेप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपके पास कोई भी रैशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को, फिर आप सही कहेंगे नहीं 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 नहीं, प्लैनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है, आप कह रहे हैं रिलीजियस है। तो यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। थैंक यू जी। ये मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट था। अब हमारे पास जी जी ये बड़ा अच्छा है कि दोनों लोगों को मॉडरेटर से शिकायत भी और बोल रहे भाई हमारी शाबाशी भी तो करते चलो। अब मेरी बात जी आपके पास जावेद अख्तर साहब 5 मिनट का वक्त है, ये आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, टाइम रीसेट कर दें जी। देखिए बहुत सारी बातें हैं। गॉड का डेफिनेशन दुनिया के किसी भी रिलीजन में है कि वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, ही इज जस्ट, ही इज काइंड, ही लव्स यू एंड सो ऑन। मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसा सुप्रीम पावर यहाँ दिखाई नहीं देती है जो इंसान की बहबूदी के लिए कुछ कर रही हो, कमज़ोर को बचा रही हो, मदद कर रही हो, जालिम को पीछे हटा रही हो। मैं नहीं देखा, तारीख में नहीं। एक तो अगर है और ये देख रहा है तमाशा तो उसका होना न होना बराबर है। दोयम ये कि ये जो है जब आप ये कहते हैं कि कायनात जिसकी कंटीजेंसी है, मैं देखिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैं, तो ये कैसे हो सकती है भाई? और फौरन आप सरेंडर कर देते हैं कि जाहिर है कि इसका बनाने वाला तो इससे 10,000 गुना था तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। उस पर आपके होने पे कोई इतराज नहीं है। उसे वो टाइमलेस है, वो पहले से था, टाइम तो बहुत बाद में आया। ये सब आप मानने को तैयार है जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं, आपके पास कोई रीजन नहीं है। आपकी तारीख क्या है मजहबों की? बिलीफ की, जो खुदाओं का बिलीफ है, ये कॉन्स्टेंटली गलत साबित होता रहा है। मतलब आप कहें कि अरिस्टोटल के जमाने में तो सब जाहिल थे, वो भी इतने ही यकीन से खुदा पे यकीन रखते थे जो अब नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा। आप लिख लीजिए और इसके आसार आपको दुनिया में दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। ये बहस क्या आज से 100 साल पहले इस तरह हो सकती थी? यहां तक तो आपको हम ले आए हैं। तो सर अरे इनको मदद की जरूरत नहीं भाई, ये सेल्फ सफिशिएंट आदमी है, आप क्यों इनकी मदद कर रहे हैं? सर प्लीज। तो ये जो है तमाम बातें अपनी जगह हैं। ये एक पैकेज है। आप अकेले, कोई आदमी ऐसा नहीं जो सिर्फ गॉड को मानता हो, उसके साथ बहुत पैराफर्नेलिया आता है, अलग अलग पैराफर्नेलिया आते हैं। दे आर ओनली, दे हैव ऑलवेज क्रिएटेड chaos इन द सोसाइटी। मैं तो आपको सीधा ऑफर देता हूँ कि दुनिया में 10 इम्पॉर्टेंट बिलीव्स हैं। आप एक मानते हैं, 9 नहीं मानते, 9 में आप एथियस्ट हैं, 9 को आप बिल्कुल रीजनेबली मेरी तरह देखते हैं। तो 90 मजहबी आदमी भी 90% एथियस्ट है, वो दूसरे खुदा नहीं मानता, एक खुदा मानता है अपना वाला, बाकियों को कहता है गलत है।
अगर आप मानना ही बंद कर दें तो आपका 10% चांस है कि आप सही हैं और 90% चांस है कि आप गलत हैं। मेरा मशवरा आप मानना छोड़ दिए तो 50% चांस होगा कि आप सही हैं और 50% चांस होगा, 40% आप गेन करेंगे बाय बिकमिंग एन एथीस्ट। ये एक फरसूदा ख्याल है, ये खत्म हो रहा है। हो सकता है मेरी जिंदगी में ना हो, लेकिन ये हो जाएगा। जो बातें ये इनको आप मेटाफिजिकल ये वो ऐसे रिस्पेक्टेबल टर्म दे दिए, ये तो उन लोग के हैं जिन्हें ना फिजिक्स मालूम थी ना मेटा मालूम था, ये उन्होंने आपको दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। और अब इस बातचीत का आखिरी राउंड शुरू होगा, डज गॉड एग्जिस्ट की ये बहस मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर साहब के बीच। आप लोग अपने अपने हाथ ऊपर करेंगे, मैं यहां से तय करूंगा। और माइक हमारे पास है क्या? एक ही माइक है ऑडियंस के लिए? 2 माइक है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। तो जी सबसे पहले हमारी सहयोगी है मारिया शकील जी, पूछिए सवाल। थोड़ा सा रुकेंगे ताकि कैमरे का फ्रेम आप पर आ जाए, आपकी तो प्रैक्टिस है टीवी की। जी नदवी साहब, मैं खुदा को मानती हूँ, पहले मैं इसी प्रमाइस से शुरू कर रही हूँ और ये बता रही हूँ आपको, मैं मानती हूँ। लेकिन कुछ सवाल हैं जो जावेद साहब ने उठाया, उसका जवाब आपको देना चाहिए। पहला सवाल ये कि गजा में सालों से छोटे बच्चे मर रहे हैं, वो उनको अगर खुदा मर्सीफुल है, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला में बहुत ताकत है, तो वो बच्चे क्यों मर रहे हैं? दूसरी बात ये कि अगर कंटिजेंसी की जो आप बात करते हैं, पूरे मुस्लिम ममालिक मिल करके भी उन गजा के बच्चों को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? क्योंकि अगर वो चाहते, क्योंकि अल्लाह ताला उन पर हुकूमत करते हैं, सब पर हुकूमत करते हैं, तो वो उनको क्यों नहीं बचा? जी थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा किया आपने इस चीज को जिक्र कर दिया, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखें, जहां तक आपने कहा कि गजा के बच्चों को मारा जा रहा है, देखें 2 वर्ल्ड व्यू है, एक एथीस्टिक वर्ल्ड व्यू, एक थीस्टिक वर्ल्ड व्यू है। बच्चे मर रहे हैं दोनों वर्ल्ड व्यू में, लेकिन हमारा वर्ल्ड व्यू कह रहा है कि रिकॉम्पेंस है, ये कह रहे हैं कि उनका मरना बेकार जाने वाला है, कोई उसका रिकॉम्पेंस नहीं है, चूंकि इनके यहां आखिरत और अल्लाह का कोई तस्वर या गॉड का कोई तस्वर नहीं है। आपने ये सवाल किया कि गॉड मर्सीफुल है, क्यों नहीं रोकता? ये मैंने बताया कि ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि गॉड को सिर्फ मर्सीफुल और ओमनीपोटेंट समझते हैं। गॉड के सिर्फ यही 2 एट्रीब्यूट्स नहीं है, गॉड के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से अल हकीम भी है, उनमें से ऑल वाइज भी है, ऑल नोइंग भी है। लिहाजा अगर इस दुनिया में किसी को तकलीफ आ रही है और गॉड उसको नहीं रोक रहा है, वो इसलिए नहीं रोक रहा है चूंकि इंसानों को फ्री विल दिया गया है। ठीक इसी तरीके से अगर एक डॉक्टर किसी छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा है, उसे तकलीफ पहुंच रही है, उसके लिमिटेड पर्सपेक्टिव के एतबार से यह गलत हो रहा है और डॉक्टर बुरा है। लेकिन जब आप ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगी, आपके और हमारे पास सिर्फ एक पिक्सल है, हमें इतना नजर आ रहा है कि गजा में कत्ल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना रिकॉम्पेंस उनको मिलने वाला है, पूरा पिक्चर गॉड के पास है। तो एक पिक्सल से आप पूरे पिक्चर को कभी भी जज नहीं कर सकती। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? आपको कुछ बोलना है इसमें? भैया आपने बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन दिया। या आप वो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, उन्हें भेजिए, वो बहुत खुश होंगे। आप जस्टिफिकेशन दे देना कि अगर गॉड नहीं है तो बच्चे क्यों मर रहे हैं, आप बताएं। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते हैं तो उन बच्चों की मौत को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? भाई ये दुनिया जो है, जो ताकतवर लोग होते हैं वो एक नाइंसाफी करते हैं। तो ये अच्छा काम है आपके नजदीक, तो नेचर नाइंसाफी पे मबनी है। अरे मेरे भाई, आप नेचर की कहाँ बात कर रहे हैं, तो इंसान की बात। तो फिर जब मैं इंसान की बात कर रहा था, आप नेचर की बात करने लग गए। एग्जामिनेशन नहीं, हाँ अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो अलग बात है, आप बोलिए, मैं मुझे कोई जल्दी जी नहीं, ये क्रॉस एग्जामिनेशन बोल तो लेने दीजिए जी। बोलिए क्या बात ये है कि ह्यूमन सोसाइटी तभी साथ में रह सकती है जब वो मोहब्बत से, एकता से, एक दूसरे के एहतराम करके रहे। इसके अलावा पॉसिबल नहीं है, अकेले तो इंसान रह नहीं सकता। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो फाउल करते हैं, वो फाउल हमेशा से तारीख में होता आया है। आज ये हो रहा है, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, बहुत जालिमाना है, बहुत जाबराना है। उसको आप कहें कि ये बच्चों को कॉम्पनसेशन मिल जाएगा या इसकी इंजेक्शन है, इंजेक्शन तो हेल्थ के लिए दिया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की जो धज्जियां उड़ रही हैं ये इंजेक्शन है,
ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, और उस टेस्ट में उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा जो आपके तस्वुर के बाहर है। ये आप 3 बरस के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट ले रहे हैं? वाह, वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है जी। ये तो उसको अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। मुफ्ती साहब, एक निवेदन आपसे है कि कम से कम थोड़ा सा माइक क्लोज एक रिलीजियस और फिलोसफिकल कर रहे मैम प्लीज। एक रिलीजियस और फिलोसफिकल ट्रेडिशन है जो ब्रह्मांड को यानी यूनिवर्स को ही अंतिम मानती है। सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, दिस इज छांदोग्य उपनिषद, एंड इट कंप्लीटली रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस और नेसेसिटी, आपके शब्दों में नेसेसिटी ऑफ अ क्रिएटर। द क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर। तो एक मिनट प्लीज। दूसरा जो सवाल आपने अभी, जो आप बार बार कह रहे हैं कि भगवान विद्वान भी है, वाइज, सब जानने वाला, तो अगर विजडम में दुनिया भर के पापों और अत्याचारों को बर्दाश्त करना शामिल है, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं फ्री विल से उसको अपोज करता हूं तो ईश्वर की विजडम और मेरी फ्री विल में कॉन्ट्राडिक्शन है। बिकॉज व्हेन आई एम अपोजिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इन गाजा, देन आई एम अपोजिंग द गॉड्स विल और गॉड्स विजडम। जवाब लेते हैं तो गॉड की विजडम में, एक मिनट सर प्लीज सर, ये एक जुमला, गॉड की विजडम है कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, मैं उसका अपोज कर रहा हूं, तो मैं गॉड की विजडम के खिलाफ जा रहा हूं। एक सवाल। दूसरा ये, नहीं, आपने 2 ऑलरेडी। सर आप और सवाल कर लें, लेकिन मुझे 2 जवाब दे। पहले आपने ये कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए। इजराइल के गॉड के मुताबिक तो मैं ठीक हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। आप तशरीफ रखिए, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। लेट मी कंप्लीट प्लीज। एक सेकंड। ये देखिए, ऐसा है कि ये सब बड़ा आपस में विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ था कि कुछ नियम बना लिए जाएं ताकि एक टाइम बाउंड बातचीत चले। और भाई साहब, आप बड़ा जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के फ्रेम में आके उस काम को गड़बड़ कर दे रहे हैं। ठीक है गुरु, अब मेरे को कहीं का गुस्सा कहीं निकालना था, सॉरी। नहीं, कोई गुस्सा नहीं है जी। तो प्रोफेसर ने सवाल पूछे, आप उनके जवाब दें, और थोड़ा ये सब लोग थोड़ा ख्याल रखें भाई, सवाल संक्षिप्त रखें जी। आपने 2 सवाल किए। सबसे पहला ये कहा कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि ये यूनिवर्स खुद नेसेसरी बीइंग है, क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर। हाउ इरैशनल इज दिस कि मैं एग्जिस्ट करूंगा बाद में, लेकिन अभी एग्जिस्ट कर भी रहा हूं, यानी एक ही टाइम में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। दिस इज नॉट ट्रू। दूसरी चीज, आपने कहा कि अगर इजराइल में, सॉरी माफ कीजिएगा, इजराइल डजंट एग्जिस्ट, ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में अगर ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में बच्चों को मारा जा रहा है फ्री विल की वजह से और गॉड नहीं रोक रहा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बताइए कि एक एग्जाम में एक बच्चा गलत आंसर लिख रहा है, सुनिए, एग्जामिनर चाहे तो रोक सकता है, क्यों नहीं रोक रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। नहीं सर, ये आपस में जी, ये क्या आपका सवाल? माइक दीजिए। फ्री विल दिया गया है टेस्ट के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। अगर फ्री विल नहीं होता तो आप कहते हमें रोबोट बना दिया गया। नॉट मिसरिप्रेजेंट माय पोजीशन, आपकी जो भी पोजीशन, मैं अपनी फ्री विल के नाते, अपने ह्यूमन विजडम के नाते गाजा में हो रही अत्याचार का विरोध करता हूं। बिल्कुल करना चाहिए। के हिसाब से मैं गॉड की विजडम का विरोध कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, जो हो रहा है गॉड की, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका वहां पर गाजा में कत्ल होना ये इंसानों के गलत इस्तेमाल का नतीजा है, फ्री विल के इस्तेमाल का नतीजा है। गॉड इसका हुक्म नहीं देता, उससे रोकता है। यही तो मसला है ना, आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर? नहीं भाई, आपने तो बताया था इंजेक्शन लगाने से बच्चे को तकलीफ होती है, ये इंजेक्शन लगा। सर, आप ऐसे रेटोरिक स्टेटमेंट दे तब तो कोई मसला नहीं समझते रहेंगे। दिस इज अ रेटोरिक स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आखिरी 30 मिनट बड़े मुश्किल होने वाले हैं जी। मुफ्ती साहब आगे बैठे हैं, इनको माइक दीजिए। हाँ, तरुण माइक आप अपने पास रखिए, आपको कैमरे का फ्रेम पता है जी। सबसे पहले दोनों को मुबारकबाद। एक सर, अपना आप नाम बता दें। आप अमेरिका में शिकागो में रहते हैं, इतना मुझे याद है। बताया आप, यासीर नदीम अल-वाजदी मेरा नाम है। जावेद सर, आपसे क्वेश्चन है इन्फिनिट रिग्रेस के ताल्लुक से। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, मसलन अगर आप सर माइक थोड़ा सा प्लीज क्लोज रखिए जी। अगर आप शायर इसलिए हैं कि आपके कोई उस्ताद शायर थे, और वो इसलिए शायर थे कि उनके कोई उस्ताद शायर थे, और इसी तरीके से हम माजी में पीछे चलते चलते चले जाएं और कहीं ना रुके, तो माफ कीजिएगा, आप कभी शायर नहीं हो सकते। लेकिन आप शायर हैं, आपका शायर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं रुके हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना?
मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब मैं नहीं मानता हूँ तो आई विल कंटिन्यू विद दिस लॉजिक जो फैलेसी नहीं हो। आप एक जगह रुक जाते हैं जाके, आप कहते हैं ये गेंद कैसे बनी, ये जजीरा कैसे बना, ये समंदर कैसे बना, ये ज़मीन कैसे बनी, और अचानक गॉड पे जाके आपको ब्रेक लग जाता है। एक बार आप सवाल नहीं करते कि भाई इनको बनाने वाला तो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो कैसे बना, उसके बारे में आपने इत्मीनान कर लिया, वो हमेशा से है। तो अगर आप उसे हमेशा से मानते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि कायनात हमेशा से है, क्या तकलीफ हम वजूद में नहीं आते जी है? हम मौजूद नहीं। अच्छा सर क्यों नहीं हो मैं सकते? बताऊं प्लीज प्लीज। जैसे मैंने मिसाल दी आपके शेर की, आपका शेर कभी वजूद में ना आता अगर शायद इसी तरह चलते रहता हमेशा। जी माइक मेरे ख्याल से एक सेकंड। इन्फिनिट रिग्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, ऐसा रहने दें, लेट्स मूव ऑन सर। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मॉडरेटर का भी ख्याल रखें। नहीं आपने तो रखा है, आपने रखा है। यहाँ पे गौहर रजा साहब है, वो भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। माइक यहाँ नीचे से ऑन कर दिए नीचे। पहले तो ये कह दूं कि मैं उन बच्चों से शर्मिंदा हूं जिनको गजा में कत्ल किया गया, क्योंकि हमारे होते हुए कत्ल किया गया। लेकिन उससे ज्यादा शर्मिंदगी इस बात से हुई कि मुझे लगा कि मुफ्ती साहब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत ही गलत मुझे बात लगा मैं गलत हो सकता हूं। बिल्कुल गलत मैं है। सवाल पूछ रहा हूं। सवाल मैं देखिए, सवाल अगर पूछ रहा हूं। एक मैं जावेद भाई से डिसएग्री करता हूं। एक सेकंड देखिए, अगर देखिए ऐसा एक सेकंड आप सर वेट अरे आप कुछ मेरे पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। अगर ऑडियंस तय करेगी तो फिर मॉडरेटर का मतलब नहीं। मेरा आप सबसे ये कहना है, ये बहस दो लोगों के बीच में है, एक तरफ मुफ्ती साहब, एक तरफ जावेद साहब। पिछले 1.5 घंटे से ये लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं। आपकी इनसे इत्तेफाकी हो सकती है, ना इत्तेफाकी हो सकती है। मेरे उस्ताद मुझे सिखा गए हैं कि मुखामुखम में असहमति की गुंजाइश बची रहनी चाहिए। अगर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं गौहर साहब, आपने जो कमाल की किताबें लिखी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, लेकिन मेरी ये गुजारिश है आप सबसे कि यदि आप इन लोगों ने जो बोला उन पर टिप्पणियां करेंगे तो ना वक्त की पाबंदी रहेगी, ना वो अनुशासन। आप सवाल पूछ लें, उस सवाल में जो बात आ जाए वो आ जाए। मैं जावेद साहब से डिसएग्री करता हूं, इसलिए जावेद साहब से सवाल पूछ रहा हूं। आपका सवाल जावेद अख्तर साहब से। और सवाल यह है मेरा कि जावेद साहब ने कई बार लॉजिक का इस्तेमाल किया कि साइंस में लॉजिक है और रिलीजन में लॉजिक नहीं है। मेरा ख्याल यह है कि रिलीजन में भी लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक की बेसिस यह है कि आप रुक जाते हैं, जिसका जिक्र जावेद साहब ने बार बार किया, यानी खुदा के तसव्वुर पे आते हुए, गॉड के तसव्वुर पे आते हुए रुक जाते हैं। और इसमें सवाल पूछना मतलब फॉरबिडन होता है। सवाल यह है कि क्या जावेद साहब इससे एग्री करते हैं कि साइंस की लॉजिक अलग है और रिलीजन की लॉजिक अलग है? बताइए सर। देखिए, 3 चीजें हैं, साइंस है, एक है मंतिक है, इस्तिदलाल है, और एक जो है कुछ भी नहीं है, फेथ है, अकीदा है। मैं अकीदे की लॉजिक का कायल नहीं हूँ। मुझे आप इस्तिदलाल से, लॉजिक से, रीजन से समझाइए, मैं मानने को तैयार हूँ, मेरा क्या नुकसान होगा। लेकिन ये कि अकीदे पे मैं नहीं जा सकता हूँ। अकीदे का मतलब है कि तुम ये मान लो, सवाल ना करो, ये नहीं। आप सारी बातें करके, बड़ी साइंटिफिक बातें करके एक जगह जाके खुदा के हुदूद पे रुक जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। मैं सरेंडर करने को तैयार नहीं। दैट्स ऑल। जी, ये आगे सर बैठे हुए हैं, इनको माइक दीजिए। भाई वो आप पूछना चाह रहे थे ना भाई? हाँ, नहीं मैं थैंक यू जी। आपका नाम? आसिम इफ्तिखार। आसिम जी, पूछिए। सर जावेद सर से सवाल है कि आपने अपने क्लोजिंग माइक थोड़ा करीब है। अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि मजहब का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा दिन नहीं जाने वाला है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है 2011 में हुई है, जिसके 50 एकेडमिशियंस ने इसको अंजाम दिया था, उसमें वो ये कहते हैं कि जो फेथ इन गॉड है वो इनबिल्ट है ह्यूमन नेचर के अंदर, जिसको हम कहते हैं फितरत के अंदर शामिल है वो। और वो ये कहते हैं कि अगर कोई ये समझता है कि मजहब को वो ख़त्म कर देगा तो ये उसकी गलत फहमी है। तो आप इसके बारे में, इस स्टडीज के बारे में क्या कहते हैं? ठीक है, मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। वो कौन से प्रोफेसर होंगे? ऐसा इनके क्या पास डेटा है, इन्होंने डेटा के होगा। डेटा क्या हो सकता है? फ्यूचर का डेटा तो नहीं हो सकता ना उनके पास।
प्रेजेंट का डेटा हो सकता है। डेटा आपने सुना 100 साल पहले का बात का डेटा, मैंने तो नहीं सुना आज तक। तो आज उनकी ये राय है और हो की राय, ठीक है, दुनिया में तरह तरह की राय है लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ इंसान ज़्यादा से ज़्यादा रीजनेबल और लॉजिकल होता जा रहा है। आज आप देखिए वेस्टर्न यूरोप में क्या परसेंटेज है नॉन बिलीवर्स की, बहुत हाई, वहाँ चर्च खाली पड़े होते हैं। तो अल्टीमेटली तो इंसान कोई ऐसी बात बहुत अरसे तक नहीं मान सकेगा, चाहे गलत या सही, जो उसे उसके दिमाग को, उसके जहन को, उसके लॉजिक को अपील न करे। वो कह रहे हैं तो ऑक्सफोर्ड के होंगे तो कैम्ब्रिज के होंगे, तो मुझे क्या लेना देना, उनका डेटा मुस्तकबिल का नहीं हो सकता है। जी दीपक, हाँ पूछे। मैं आऊंगा अभी पीछे की साइड भी आऊंगा, माइक वहीं भेजूंगा 2-3 साल के लिए। जी जावेद साहब आपसे सवाल है। नमस्ते। अरे भाई सर, अगर आप ही लोग को तय करना है तो फिर 200 लोग तय कर लेंगे। नहीं सर, प्लीज डोंट डू दिस सर। सर एवरीबडी हैज अ राइट सर, बट वी कैन ओनली टेक सिलेक्टेड क्वेश्चंस। नो सर, ये यंग लोग भी हैं तो इनकी ये अब उतने यंग, भाई आप यंग हैं कि नहीं हैं? वो कह रहे हैं वो भी यंग हैं साहब, आप उनकी नौजवानी पर दावा उनको ही करने थे। हाँ मुफ्ती साहब आप यंग, हाँ पूछे। अरे भैया सर मेरा सवाल ये है, इनसे भी तो पूछो जी। नहीं, बस आपसे एक सवाल है। जैसे थीस्टों के पास अपने जो ईश्वर को मानते हैं उनके पास अपने सोशल गेट टुगेदर्स हैं, 5 रोजा क्रिसमस आने वाला है, होली है, दिवाली है, ईद है। एथिस्ट क्या ऑफर कर रहे हैं? मतलब मैं इनकी दुकान से बोलूं मैं आना चाहता हूं उस तरफ, पर मैं अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा हूं। मैं सोशल गेट टुगेदर्स क्या है आपके पास? वो ये कह रहे हैं कि जो धार्मिक लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग, उनके उत्सव त्योहार कॉन्ग्रेगेशन बहुत हैं। अब आपको मैं एक सुनाता हूँ, यहाँ हिस्टोरियन भी बैठे हैं, मृदुला जी आप बताइएगा सही है क्या। ये एक कॉन्स्टेंटाइन, एक ग्रीक रोमन बादशाह था जो क्रिश्चियनिटी आने के 400 साल बाद उसने डिसाइड किया कि मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा, मेरी पूरी स्टेट कैंसिल हो जाएगी। उस जमाने में ऐसे ही होता था, राजा जो धर्म इख्तियार करता था वो जनता भी कर लेती थी, इसलिए कि वो हो गया था बैंकरप्ट, और उसे जो मेडिटेरियन कोस्ट के रिच क्रिश्चियन वो थे मर्चेंट, उससे पैसा चाहिए था। तो उसने कहा यार क्रिश्चियन हो जाओ। तो उसने अपने वजीर से कहा कि भाई ये हिस्ट्री है कि अब हम लोग क्रिश्चियन हो जाते हैं। पहले सर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जो पेगन फेस्टिवल होता, जो पेगन फेस्टिवल हो, जो फेस्टिवल होता है वो बंद हो जाएगा, इसलिए कि हम क्रिश्चियन हो गए तो होगा नहीं। तो वो बच्चों को बहुत बुरा लगेगा, पब्लिक को बहुत इंजॉय करते हैं, खासतौर से 25 को मेन डे। उसने कहा ये तो सही कह रहे हो, ये जीसस क्राइस्ट की पैदाइश कब थी? पहले साहब वो अप्रैल में थी। नहीं, कट करो, वो 25 दिसंबर को। यह हकीकत है जी। और 400 साल बाद क्रिश्चियनिटी के अप्रैल से दिसंबर ले आए, और इसलिए कि यहाँ पेगन फेस्टिवल होता था। अब मनाते हैं आप आराम से। ये जो सारे फेस्टिवल हैं ये रिलीजन से, हर एक को एक एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट चाहिए होता है अपनी कंपनी चलाने के लिए। तो ये रिलीजन ने, ये सेकुलर त्योहार थे जिन्हें रिलीजन्स ने ले लिया है। ये मौसम के थे, फसलों के थे, किसानों के थे, उसको आपने लेके रिलीजियस रंग दे दिया। ये कोई रिलीजन से थोड़ी आए आप। अच्छा हमें देखिए, हम तो मुल्द हैं, हम ईद मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं। बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी होली हमारे घर में होती है, सबसे बड़ी ईद हमारे घर में होती है। वो हमारी सोशल वो है, हमारे हेरिटेज है। ऐसा थोड़ी है कि वी विल थ्रो द बेबी अलॉन्ग विद द वाटर। ये तो अच्छी चीज़ है, इन्हें रखो, जो बेकार है फेंक दो। जी हाँ, हेलो जी, मेरा सवाल नादवी जी से है। जैसा कि आपने बोला कि गॉड टाइम के भी परे है, और गॉड इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है कि उसे ह्यूमन माइंड समझ नहीं सकता, और गॉड ने अर्थ पे फ्री विल भी दे दी है। तो आप अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हैं गॉड के बारे में बात करके? अपन को तो बात करनी चाहिए कि सोसाइटी को बेहतर कैसे करें। जी, मैं गॉड वही बताता है सोसाइटी को कैसे बेहतर करें। अभी मैं आपका जवाब देता हूं। आपने कहा कि टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, सो नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसा आपने बोला कि गॉड बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। मैंने कहा ही नहीं कि कॉम्प्लेक्स है, तो आपके अल्फाज हैं। कॉम्प्लेक्स का लफ्ज
गॉड के लिए सुइटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स वो चीजें होती हैं जो ऑब्जेक्ट हो। गॉड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट जिसको आप इंस्ट्रूमेंट के जरिए लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करें, ओ इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। नो, वो कोई कार का इंजन नहीं है। वो फिलोसॉफिकली नेसेसरी बीइंग ऐसी बीइंग है जो सिंपल बीइंग है। हाँ, आप उसको मुकम्मल तौर पे उसकी तमाम हिकमतों को जान ले और हर चीज को जान ले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑल वाइज है, आप ऑल वाइज नहीं है, और वो खुदा है, वो आपको सारी चीजें बता दे, ये जरूरी नहीं। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जब गॉड इतना परे है इस दुनिया से कि उसने अर्थ पे फ्री विल भी दी है, हम सब ह्यूमंस की फ्री विल है, और जो सोसाइटी में हो रहा है वो अपन लोग डिसाइड करेंगे, तो अपन लोग डिसाइड नहीं करेंगे ना, अपन लोग डिसाइड नहीं करेंगे। गॉड जो है, गॉड ने वो उसकी जात, उसकी एग्जिस्टेंस टाइम एंड स्पेस से परे है, लेकिन वो हमारा टेस्ट ले रहा है और उसी गॉड ने हमें बताया कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जाहिर उस गॉड की बात सुनेंगे ना। जी, वो पीछे एक चश्मा लगाए जो मैम खड़ी हैं, उनको दीजिए। हाँ, आप जी जी बिल्कुल आएंगे। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं सब तरफ जाने की। हाँ, उनको दीजिए माइक। जी, हेलो सर, मैं ओमनी प्रेजेंट नहीं हूं, टाइम पाबंद हूं और जहां तक कोशिश कर सकता हूं करूंगा। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम उर्सुला है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूं और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूं। मेरा सवाल मुफ्ती जी से है कि इस हॉल के इस कमरे में बैठ के हम लोग रेप की मोरालिटी के बारे में फिलोसफिकली बात तो कर सकते हैं, बट असलियत ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में औरतें रेप के थ्रू गुजरती हैं, और हम लोग सिर्फ नंबर्स पे इस तरह नहीं देख सकते, क्योंकि कितनी औरतें हैं इन कंट्रीज में जहां पे आप बता रहे हैं कि केसेस कम हैं, जिनका एक्सेस है कि वो जाके केस फाइल कर सके। कितनी औरतें हैं जो जिनको काम करने की आजादी है उन कंट्रीज में। यूरोप में ये आजादी आ गई, यूरोप में ये रूल्स आ गए, तो हम आज उसके बारे में बात कर पा रहे हैं। जी, जवाब। आपने ये कहा कि कमरे में बंद होकर हम लोग इस पर फिलोसफिकली बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, वो ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, जो बहुत गलत हो रहा है, और वो सफर कर रही है। आई एग्री, बहुत गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है उसको हमें रोकना है। और क्यों रोकना है, वो गलत क्यों है? हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन है, इनके पास उसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां पे भी जुल्म हो रहा है, जहां पे भी औरत पे जुल्म हो रहा है, या उसकी इज्जत लूटी जा रही है, या उसे तकलीफ पहुंचाई जा रही है, और सिर्फ औरत नहीं, किसी इंसान के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ खड़ा होना, ये मोरालिटी हमारे पास गॉड के पास से आई है। वरना जावेद साहब तो कह रहे हैं कि जो है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी, तो मेजॉरिटी तो कभी भी बदल सकती है। क्या आप नाचो? ये थोड़ी सी आपको गलतफहमी है। मैं अगर मेरे जुमले से ये मतलब निकला या मैंने कहा, तो ये जुमला मैं वापस लेता हूँ, ये मेरा मतलब ही नहीं था कि मेजॉरिटी डिसाइड करेगी। मेजॉरिटी डिसाइड करे तो दुनिया में बड़ी, वैसे आपने कहा था ये जुमला, अच्छा हो, मैं मान रहा हूँ, बाद में रिकैप कर लेंगे। अरे एक सेकंड, मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे। मुनासिब बात यह है कि हम सब के सब दिल में जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें पता है अच्छी तरह से। जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें भी मालूम अच्छा क्या है। यही तो सवाल था हजरत कि फिर ये मोरालिटी आई कहां से? क्रॉस एग्जामिनेशन। हाँ जी, हाँ। मोरालिटी साथ रहने की डिजायर से आई, यानी साथ रहकर जो कुछ कह दे, जो कुछ कर दे, वो हो जाएगा। नहीं नहीं, तो आप कायदे से रह ही कर सकते हैं जब तक लोगों में मोरालिटी हो, वरना आप क्यास हो जाएगा। ये आपको कैसे पता? जी, हमने देखा ना, जहाँ मोरालिटी का क्यास हो गया, हम देखते हैं। कहाँ पे देखते भाई? दुनिया में। आप जो कह रहे हैं, आप कहीं पे अगर गलत हो रहा है, इस बहस तो उसको आप गलत देखिए। आप एपिस्टेमोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं ऑन्टोलॉजी की बात कर रहा हूं। मैं इस बहस के बाद आप दोनों लोगों को चाय पे होस्ट करूंगा, वहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर लीजिएगा। अभी ऑडियंस का हक मार रहे हैं आप लोग भाई, सर जस्ट लोग हैं आप लोग। और ये भाई ये हाँ, उधर आएंगे, जी सर आएंगे। अच्छा सर, मेरा नाम लईकुर रहमान है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है कि सर यू आर ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं भी उसी चमन का बुलबुल। हाँ सर, तो बहुत खुशी हुई मुझे जान करके कि मैं आपसे मिलूंगा। सवाल सर, मेरा सवाल यह है, सर सैयद अली रहमा का नजरिया ये था कि खुदा के वजूद को अकल के दायरे में रह करके तलाश करना, न के पूरी तौर से उसका इनकार कर देना। सर, हाउ विल यू डिफाइन इट? नहीं, तो ये तो आप इन्हें बताइए। ये सवाल आपसे खुदा का वजूद साबित कर रहे हैं। तो सर, आपने इनकार कर रखा है, इस वजह से मेरा क्वेश्चन। उन्होंने यही एक सेकंड, सर सैयद ने यही कहा ना कि अकल से आप खुदा के वजूद को साबित नहीं कर सकते, यही कहा ना भाई। वो उन्होंने कहा कर सकते हैं और वो कर दिया गया आज।
वो फोन लो। तलाश करना या साबित करना अकल से नहीं हो सकता। अरे सवाल तो सुन लीजिए जी। अकल से नहीं हो सकता है, यही कहा ना आपने। अकल से हो सकता है। अरे वो यही कह रहे भाई, आप बता रहे हो सकता है, वो तो कुछ और। आप अगर सर देखो नौजवान फोन ले लो, इतनी कमाल की यूनिवर्सिटी है। अरे भाई दे दो, दे दो भाई, मेरी बात सुनो, माइक पे बोलो ताकि जो लाखों लोग देख रहे हैं। माइक दे दो ना। अरे देंगे ना माइक, तुम ठहरो तो। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि सर सैयद अलैहि रहमा का एक नजरिया था अपना कि खुदा का जो वजूद है उसको अकल के दायरे में रह करके तलाश करना है, न कि पूरे तौर से इनकार कर देना है। ये उनका कॉन्सेप्ट था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मुझे अकल के दायरे में रख के मैंने बहुत तलाश की, मुझे मिला नहीं। हाँ ये इधर वो चश्मा लगाए जो, हाँ उनको दे दीजिए। जी जी फटाफट पूछिए, बस 5 मिनट है, 5 मिनट में खत्म हो रहा है। हाँ अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, एंड मेरा सवाल जावेद अख्तर साहब से। क्या नाम है आपका? अरे भैया सब मुझे पूछ रहे हो। फैज पूछिए फैज साहब। तो मेरा सवाल ये है कि अभी जो एथियस्ट है वो प्रॉब्लम ऑफ इविल आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स, राइट? कि इस दुनिया में इतना सारा इविल है और अगेंस्ट मुस्लिम तो यहाँ अगेंस्ट थियस्ट। हाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए भाई, पूरी मशक्कत ही इसी बात की थी कि किसी एक मजहब पे बात न टिके। जी, तो बेसिकली आर्गुमेंट ऐसा है कि इस दुनिया में इतना ज्यादा इविल एग्जिस्ट करता है और अगर एक ऑल गुड गॉड है तो वो रोकता क्यों नहीं है? लेकिन इस सवाल में एक हिडन अजम्पशन ये है कि इस दुनिया में इविल एग्जिस्ट करता है। अब एथियस्ट ये कैसे ऑन्टोलॉजिकली प्रूव कर सकते हैं कि इस दुनिया में इविल एग्जिस्ट करता है? मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझा। नहीं सर आप हम लोग इनको सुनने आए। नहीं प्लीज डोंट डू दैट। आई वांट टू एक्सप्लेन ऑन्टोलॉजिकली। हम समझ गए सर, इनको आप जवाब देने दीजिए। अच्छा सवाल पूछ लो। मैं अभी तक क्या था वो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेता हूँ। तुम गुरु, तो हम जब इसका राउंड 13 करेंगे ना तब तुमको स्टेज पे बिठाएंगे। जी तो हाँ जल्दी से। तो देखिए एथियज्म के हिसाब से सब कुछ रैंडमली बन गया है, सब कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। एक पत्थर में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है कि हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अलग अलग रीअरेंजमेंट है। अब एक पत्थर को कोई इंसान तलवार से 2 टुकड़ों में काट दे या मुझे, अकॉर्डिंग टू एथियज्म इट इज सेम। देयर इज नो इविल एंड गुड अकॉर्डिंग टू एथियज्म। जी अच्छा, फैज साहब का सवाल ये है कि हाँ कोशिश भी करते तो इससे गलत सवाल नहीं कर पाते। एक लाइफ फॉर्म है और लाइफ फॉर्म में फीलिंग्स है, मतलब लाइफ फॉर्म सुनता है, देखता है, टेस्ट कर सकता है, फील कर सकता है। तो उसकी ये जो क्वालिटी इस बबल में आ गई है, वो जानवर में भी है, इंसान में भी है। तो जाहिर है कि उसे कोई तकलीफ पहुंचेगी, तो चूंकि उसके पास वो सेंसिटिविटी है तो मैं करेगा। पत्थर में वो सेंसिटिविटी नहीं है। तो ये क्या सवाल हुआ कि अगर पत्थर को काटा तो पत्थर को तकलीफ नहीं होती, तो आपको काटे तो आपको क्यों तकलीफ हो? बैठ जाइए। जी हाँ अगला सवाल। हाँ पूछे जी जावेद अख्तर साहब। अरे भैया सब आप लोग मुफ्ती साहब को छोड़ रहे हैं, मेरे ही पीछे पड़े हैं क्या? चलो बोलो भाई। You asked how God can exist when children die in Gaza. Huh? You asked how God can exist when children die in Gaza, and you also mentioned the rise of atheism in Europe. But the same events also are leading many atheists and non-believers to turn towards faith. How do you interpret this contradiction, where suffering pushes some away from God, yet brings others closer to belief? देखिए आपको एक बात बताऊं, दुनिया परफेक्ट तो कहीं भी नहीं है, हर जगह कुछ खामियां हैं। बेटा एक मिनट, मैं आप ही को कहेंगे, देखो वो तो कुछ खामियां, कमजोरियां, खराबियां सब जगह है। लेकिन अगर देखोगे ईमानदारी से कि दुनिया सबसे ज़्यादा महज़ब कहाँ है, एक आम शहरी को कहाँ हुकूक हासिल हैं, वो बोल सकता है, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से राय दे सकता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल सकता है, बरसरे इक़्तिदार लोगों के बारे में बोल सकता है, सरमायादारों के ख़िलाफ़ बोल सकता है। तो आपको ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मिलेगा, वेस्टर्न यूरोप में मिलेगा। मैं नहीं कह रहा वो परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं, वहाँ बहुत खराबियाँ भी हैं, परफेक्ट तो कोई। लेकिन जिन जिन मुल्कों में, लैटिन अमेरिका देखो, गल्फ देखो, वहाँ पर आपको ये ज़रूर है कि रेप नहीं होते होंगे। रेप की ज़रूरत क्या है भाई? उसको तो ख़रीद लो, घर में रखो, तो सड़क पर रेप करने की क्या ज़रूरत है? मगर सुनिए, मगर हकीकत ये है कि वहाँ शख्सी आज़ादी राय देने की, बोलने की नहीं है।
जी, ये एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब से। हाँ मैम, इनको माइक दीजिए। शुक्रिया। मेरा नाम मनीषा है, मैं हरियाणा से आई हूँ। मैं मुफ्ती साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ। आप बार बार जावेद साहब को कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रहे हैं कि आपने ये कहा, लेकिन आप भी assumptions के बेसिस पे बात कर रहे हैं। आपने खुदा के होने का कौन सा प्रूफ पेश किया है खुदा की एग्जिस्टेंस का? अब इस सवाल को अलग रहने दीजिए, कौन एथीस्ट है कौन नहीं है। और दूसरी बात जो आपने एक छोटी सी कही थी कि ये फ्री विल का इस्तेमाल करता है इंसान अपनी, लेकिन उस फ्री विल का इस्तेमाल में मतलब खुदा ने ये दे दी सबको ये इजाजत कि वो कितना घिनौनापन और कितनी ज्यादा खराब से खराब तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जवाब सुनते जी। आप फ्री विल को मानती है ना, या आप कहती है कि फ्री विल नहीं है ना, मानती है ना? तो अब आपके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर एक इंसान उस फ्री विल का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहा है और बच के अच्छी जिंदगी गुजार के निकल जा रहा है, उसका कोई रिकॉम्पेंस नहीं है। हमारे वर्ल्ड व्यू में जो इंसान गलत काम कर रहा है उसको भी रिकॉम्पेंस यानी उसका बुरा बदला मिलना है, और जो सही काम कर रहा है उसको सही बदला मिलना है। लिहाजा जो फ्री विल है वो इस तरीके से है कि एक लिमिटेड टाइम तक खुदा ने मोहलत दी है। ऐसा नहीं कि छूट दे दी, जो करना है करते रहो हमेशा। वक्त आएगा जब एग्जाम का टाइम खत्म होगा तब रिजल्ट आएगा। दौराने एग्जाम जबरदस्ती आपको नहीं बताया जाएगा। अरे भाई एक सेकंड जी, सवाल मुफ्ती साहब से मेरा, मुफ्ती साहब से जी हाँ हाँ हाँ, मैम रुक जाइए, आपसे आप इसके बाद आपसे बोलिए। मैं मुफ्ती साहब एक ही सवाल करता हूँ कि अगर जो हो रहा है फ्री विल से हो रहा है और एक दिन बरोज़ क़यामत इंसाफ होगा मैशर में वगैरह वगैरह, तो दुआ क्यों मांगते हैं लोग? दुआ मांगते हैं इसके मतलब है अभी भी उसने ये डिपार्टमेंट रखा है कि मैं रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल बिल्कुल ही कैन। तो तुम कैन हो, तुम मुझे नौकरी दिला देते हो, मेरे बेटे को ग्रीन कार्ड दिला देते हो, और 45,000 बच्चे मरते उन्हें रोकते नहीं हो। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जालिमों को कभी पकड़ ही नहीं होती है? अरे जो भी पकड़ होगी वो बच्चे रोते हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में यही कहा था कि जनाब जावेद साहब सिर्फ इमोशनल आर्गुमेंट देंगे। दिस इज एन इमोशनल आर्गुमेंट। ये छोटे मोटे इसके पीछे का रीजन मैंने बताया क्या है? देखिए मैं बार-बार यहाँ पर मंच से आप लोगों को सज्जनों इसलिए कह रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपके कॉन्शियंस पे जोर रहे कि आपको ऑर्डर बचा के रखना है। वक्त तय हुआ था, ये वक्त पूरा हुआ, आपने इतने धैर्यपूर्वक सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। यदि इन दोनों विद्वानों की इच्छा होगी तो कभी हम इस बातचीत का राउंड 2, राउंड 3, यही तो देखिए खूबी है इंसान की कि बहस मुबाहसे में वो पड़ा रहता है। आप लोगों ने बड़े धैर्य का परिचय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये बातचीत यहाँ पे समाप्त होती है। मैं एक बात बता दूं, ये सारी बहस हो गई, अब मुफ्ती साहब और बड़े मुफ्ती साहब इन साथ के साथ मैं खाना खाने वाला हूँ। अच्छा। आप